Assalamu alaikum ji. Welcome back to another episode of Kazi. My guest today was Rayan Khan. Rayan Khan is probably the youngest self-made millionaire in Pakistan. Fair hai? Bilkul. Haan. He did that through crypto. He has since educated a lot of people in cryptocurrency, in trading in crypto, and now he hopes to start an NFT project. The roadmap for the NFT project will be provided in the link below. The conversation generally revolves around how you can make money off crypto, how you can make money off NFTs, and how his NFT project in particular hopes to build a community that will expand through Pakistan and even internationally. Fair enough. Yeah. All links will be provided in the description. Enjoy. Three, two, one. Rayan Khan. Yes, सही है? बिल्कुल. हाँ, बिल्कुल. good. रयान कैसा खान. रयान? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं. Alhamdulillah, bro. I was telling you about people asking me, what's your advice for people who want to start a podcast? Yes. I have no idea, man. Just talk to people, I guess. I don't know. Allah Rahim karega. But okay, let's quickly introduce you first because अभी तक सोशल मीडिया पे कितनी आपकी है? नहीं, बिल्कुल. नहीं मतलब ऐसे रीच नहीं है. 1500 फॉलोअर्स इंस्टाग्राम. वो तो दोस्त होंगे ना. हाँ, दोस्त है. मतलब ऐसे कोई नहीं है. हाँ, तो फिर आपको you're the youngest millionaire of Pakistan. The youngest self-made. Self-made, sorry, yes. लोग पैदाइशी होते हैं ना यहाँ पे. Self-made millionaire of Pakistan. You're the youngest self-made millionaire of Pakistan. बिल्कुल. How old were you when you made your million? 16. You were 16 when you made your 2 years million? back almost. 3 सारी years back. figures approximately. हाँ, हाँ. approximate सही है. And how did you make your money? Crypto. Just crypto? Okay. And that is primarily what you wanted to talk about. Yes. So let's just बिल्कुल. let's just jump into it inshallah. आपका recent you're going to be launching an NFT project soon. Absolutely. Right? Inshallah khair se. So but you've been researching crypto now for 5 odd years. Yes, almost. Start with crypto. Yes. Explain to me how you got into it and then we'll go into NFTs. ठीक है? बताओ. ऐसी बात है कि मैं क्रिप्टो में तो काफ़ी टाइम से हूँ. जब मैं 10 साल का था, 8 साल पहले से मैं क्रिप्टो में हूँ, लेकिन मैं ट्रेडिंग नहीं करता था. मैं इन्फॉर्मेशन लेते रहता था, पढ़ते रहता था. बिकॉज ऑफ वकाज़ का वो वीडियोस बनाते थे तो मैं उनको देखता था. तो फिर 8 साल पहले उस बिटकॉइन की वैल्यू बहुत कम थी. $100, $50, $150. ठीक है. तो मैं उसमें उस वक्त ये होता था कि आप वेबसाइट थी, एड्स सीखते थे, तो उसमें आपको रिटर्न बिटकॉइन मिलता था. तो मैं ऐड देखते रहता था. छोटा सा था, 10 साल का, कुछ काम तो था नहीं, तो मैं ऐड देखते रहता. तो इस तरह मैंने एक बिटकॉइन बना लिया था, एक पूरा बिटकॉइन. उस वक्त वैल्यू इतनी नहीं थी, लेकिन थोड़ा रिसेंटली $69,000 तक बिटकॉइन गया है. हाँ. उस वक्त वैल्यू नहीं थी तो इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं थी, लेकिन मैंने बनाया था. फिर एक मैंने ख़रीदा था, मुझे याद नहीं है कितने का था, लेकिन बहुत सस्ता था उस वक्त जब मैंने ख़रीदा था. Okay. And you kept both of them? नहीं, उसके बाद तो इस टका नहीं. Okay. तो मैं अल्लाह खैर करे. 2 बिटकॉइन थे. हाँ. और आज के टाइम में वो बिटकॉइन नहीं है बिकॉज आई लॉस्ट माई वॉलेट. Bro, अच्छा, okay. I know what that means, right? Because I know what a hard wallet is and what a soft wallet is and all those things. Explain to people again what crypto is. Yes. Right? हाँ. क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन में काफ़ी सारे कॉइन्स हैं, काफ़ी सारी 1000 से ज़्यादा कॉइन्स हैं इस वक्त मार्केट में. तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रिप्टो करेंसीज, लाइक बिटकॉइन, इथेरियम, एप, डॉट, लिंक, ये सारे कॉइन्स हैं. Which are basically they have no tangible form. उनका कोई अभी तक तो नहीं है फिजिकल. उनका कोई वजूद नहीं होता. All digital and they are stores of value. Yes. Stored on the blockchain. Of course. Which is like it's a program, it's an algorithm program, ऐसा कोई सीन होता है, but again it's completely digital. And Bitcoin is probably the oldest. Yes. Crypto. First coin. हाँ, first coin or Bitcoin और वो it's also the biggest strongest. उसके 2 किस्म के वॉलेट होते हैं. You can either store it on like an app on your phone. Yes. और हार्डवेयर वॉलेट. आपके पास हार्ड वॉलेट था? नहीं, उस वक्त नहीं था. अच्छा, एक और बात, मेरे पास वही फ़ोन में था, लेकिन वो जो वेबसाइट थी ना, उस वक्त बाइनेंस कुछ भी नहीं था. बाइनेंस जो है ना, वो ट्रेडिंग ऐप है. आते हैं बाइनेंस एप्लीकेशन, ठीक है, बाइनेंस. तो उस वक्त मेरे पास बाइनेंस कुछ भी नहीं था. ऐसी छोटी छोटी एप्लीकेशंस थी, इसमें ये करके बिटकॉइन बना लेता था. तो अभी भी है, उसका नाम मुझे याद नहीं है. वो एक छोटी सी ऐप थी, इसमें मैंने एड, उस वक्त वो बहुत मशहूर थी क्योंकि एड्स देखो बदले में आपको बिटकॉइन देते. वो बहुत कम वैल्यू देते थे. मैंने काफ़ी टाइम, महीनों करके बिटकॉइन बनाया था, सालों बिटकॉइन. अच्छा, दैट्स द अदर थिंग अबाउट क्रिप्टो करेंसीज आल्सो. ये भी बताते चले लोगों को कि क्रिप्टो करेंसीज कैन be divided into like 1,000th of a fraction. Yes, of course. उसमें ऐसा नहीं है कि आधा सिर्फ कर सके या बिटकॉइन इस वक्त फॉर एग्जांपल हम अभी $30,000 का चल रहा है, $30,000, $30,000. आप इसको
बाइनेंस पे मिनिमम $10 का भी खरीद सकते हैं. 0.00 कुछ वैल्यू आ जाएगी. हाँ एग्जैक्टली $10 का खरीद भी सकते हो और $10 की तिजारत भी कर सकते हैं. हाँ बिल्कुल. एटलीस्ट बाइनेंस पे ये रूल है कि एटलीस्ट $10 हो आपके पास कोई भी कॉइन में करने के लिए. थियोरेटिकली यू कैन ब्रेक इट डाउन टू ऑल सॉर्ट्स. बिल्कुल. एंड सो जब आप बोलते हो आपने बिटकॉइन कमाया था, यू डिडंट जस्ट गेट अ बिटकॉइन. नो 0. अच्छा जो पूरा बिटकॉइन है जब वैल्यू कम होती है 0.0 में आते हैं उसको बोलते हैं सतोशी. हाँ सतोशी बोलते हैं बिकॉज ही वाज द क्रिएटर ऑफ बिटकॉइन. यस फाउंडर फाउंडर बिटकॉइन. तो वो फाउंडर था बिटकॉइन का, तो उसको सतोशी बोलते थे. तो ये वैल्यूज होती हैं वो सतोशी बोलते हैं. तो सतोशीज मिलती थी बहुत कम, महीनों रोज एड्स दिखता था बैठ के. उसके बाद बिटकॉइन, लेकिन फिर वो जो वेबसाइट थी जब उसके बाद में बिल्कुल आउट हो गया था क्रिप्टो से 3-4 साल. सही है क्योंकि वॉलेट गुम हो गया. नहीं उस वक्त वॉलेट था, मतलब मेरे बिटकॉइन वॉलेट में पड़े हुए थे. इतना फोकस नहीं था क्योंकि बिटकॉइन वॉज बिटकॉइन जस्ट बिटकॉइन. मतलब $100 $200 तो इतनी उस वक्त वैल्यू नहीं थी. तो मैं फिर आउट हो गया सीन से, थोड़ी पढ़ाई की तरफ चला गया मम्मा पापा की वजह से. मुझे तो इंटरेस्ट नहीं था. सही. पढ़ाई में मैं चला गया. तो उसके बाद फिर जब मैंने वापसी देखा कि अब ट्रेंड पे आ रहा है बिटकॉइन $1000 का हो गया, आई ट्राई टू एक्सेस माई वॉलेट, अगर पासवर्ड और ईमेल दोनों मैं भूल चुका था बिकॉज आई वाज यंग. हाँ तो इसका एक रिकवरी वो सीड भी तो होता है ना. वो उस वक्त नहीं होता था ना. उस वक्त वो जो वेबसाइट थी उस पर ये नहीं होता था. हाँ अब आता है सीड फ्रेज, और वो भी आपको लिखना पड़ता है कहीं पे हार्ड. हाँ और मैं सबको रेकमेंड करूंगा कि सीड फ्रेज कभी भी फोन में नहीं रखना चाहिए कहीं पे भी. नहीं फोन कैन बी हैक्ड. हाँ एक्चुअल कॉपी बिल्कुल. हाँ इस पे पेपर पे लिखें और आप कहीं पे घर में स्टोर कर लें. ऐसे तो उस वक्त वो नहीं होता था, बस पासवर्ड ईमेल थी. तो मैं ईमेल मतलब उससे अकाउंट वापसी रिकवर हो सकता है, लेकिन ईमेल भी मैं भूल चुका था. 3-4 साल हो गए थे और मैं छोटा था. तो फिर वो So you had 2 bitcoins. I had 2 bitcoins. You still have them technically. Yes, They're still but- somewhere. हाँ. वो कैसे रिकवर होंगे 2 बिटकॉइन? अच्छा एक और बंदा है, उसने उसके पास उसने पिज़्ज़ा डिलीवरी उस वक्त बिटकॉइन की वैल्यू थी $1 या 0. अच्छा शुरू वो $1 से होता, नीचे भी आ गया, $0.1 तक गया था बिटकॉइन. तो उस वक्त उसने पेमेंट करी थी पिज़्ज़ा वाले को टिप 10,000 बिटकॉइन. ये आपको पता है? नहीं ब्रो. ये बड़ी वायरल स्टोरी है बिटकॉइन की. वो पिज़्ज़ा आया था तो टिप उसने 10,000 बिटकॉइन दी थी. ऐसे ही वो होगा अमीर, लेकिन 10,000 बिटकॉइन, अब पता नहीं इसकी 60-600 करोड़ बनते हैं मुझे इतनी. तो उसने ऐसी दे दी थी, अब वो रिग्रेट करता है. एक और बंदा है, उसके पास कितने हज़ारों बिटकॉइन थे, उसका वॉलेट उसने फेंक दिया था. तो अब वो नहीं हो रहा उसका रिकवर. उसने अब आजकल 1 साल पहले, जबकि 10 साल पुरानी बातें हैं, 8 साल पुरानी, पिछले साल वो कोशिश कर रहा है जो गार्बेज सेंटर्स या जो भी होता है बाहर, वहाँ पे जाकर. मेरी भी. So my story is similar in that I bought A1 Bitcoin when it was $500 for 1 Bitcoin. ठीक है. And I put it in a Trezor and I also forgot it. यूनिवर्सिटी पढ़ाई मैंने बहुत छोड़ा उसको. फिर पाकिस्तान आ गया. पाकिस्तान भी मैं ऐसे ही ले आया. मैं यार कहाँ वहाँ पे छोड़ के आऊँगा ना कैनेडा से. I was in Canada. तो I came back, I left it somewhere and then all of a sudden one day, मैं न्यूज़ भी नहीं चेक करता था ना. और इतनी वायरल नहीं था उस वक्त, मतलब न्यूज़ में भी इतना कोई नहीं आता था. एंड ऑल ऑफ अ सडन वन डे आई फाइंड आउट कि उसकी कोई उस वक्त शायद $25,000 उसकी कीमत थी. हाँ 25 फ्रॉम $500, राइट. बट अगेन ओवर अ पीरियड ऑफ 5-6 साल, फेयर, राइट. बट अब वही वाली बात है, इन हाइंडसाइट मैं सोचता हूँ कि जहाँ एक खरीदा था वहाँ 10 खरीद लेता. अच्छा एक और मैंने भी $150 के अपने फादर को बोला था कि प्लीज़ बिटकॉइन ले लें. मैं छोटा था. ले लें, नहीं लिया. अब रिग्रेट करते हैं. हाँ इतना ज़्यादा नहीं होगा, अभी भी इतनी नॉलेज सब नहीं है हम लोगों को. थोड़े बड़े हो गए हैं तो ज़्यादा फोकस नहीं है, वो अपने काम ही करते रहते हैं. लेकिन माशाल्लाह से. हाँ ब्रो इतना रिग्रेट नहीं करना चाहिए, अल्लाह खैर करेगा. बट अगेन but I am someone who's also experienced in crypto. Na? Perfect. If you were trying to explain to someone who's absolutely aam insan, who's like, bro, I've never ever bought, I don't know what cryptocurrency is, where would you start? How would you do that? Like एक होता है पेपर नोट, फियात, पाकिस्तानी रुपीज़. हाँ. एक होता है डिजिटल पैसे, उसको हम बोलेंगे बिटकॉइन. एक कॉइन है डिजिटली, हमारे हाथ में नहीं है, फिजिकली नहीं है, फ़ोन के अंदर है. सही है. ठीक है, उसको हम बाय कर सकते हैं. उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती है. पहली वजूहत बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वो अगर आप अपने पैसे 1 करोड़ रुपये बैंक में रखवाएंगे थोड़े बढ़ेंगे वो साल में, लेकिन अगर आप बिटकॉइन डालेंगे वो ज़्यादा चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं. इन्वेस्टमेंट हो गई. दूसरी बात, आपके पास एसेट है. सही. ठीक है. तीसरी बात है कि आगे जाकर ना मेरे हिसाब से बिटकॉइन की सप्लाई ख़त्म हो जाएगी, मतलब लोगों के पास आ जाएंगे बिटकॉइन. हाँ ऐसे ही मार्केट में ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, डिमांड बढ़ जाएगी. तो आप बोलेंगे फ़ख्र से कि यार मेरे पास बिटकॉइन है, अगला बोलेगा आपके पास बिटकॉइन है, क्योंकि सप्लाई ख़त्म हो जाएगी और इतना अच्छा मशहूर एसेट है. गोल्ड को भी छोड़ दिया था बिटकॉइन ने. तो आपके लिए 3 चीज़ें, एसेट भी है, इन्वेस्टमेंट के लिए भी, प्रॉफिट भी कर सकते हैं. लेकिन व्हाट अबाउट जस्ट एनी क्रिप्टो? How are they better than जो fiat currency होती है, जो पेपर करेंसी होती है, उसको बोलते हैं fiat currency ना. How are they better than crypto? पहली बात, आप जब चाहें
जिधर जाएं जितना पैसा निकाल सकते हैं जितना भी विद इन सेकेंड्स सेकेंड्स इट्स ऑल योर मनी या करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ 1 लाख रुपए आप विद इन सेकेंड्स। पहली बात टाइम खत्म हो गया, ठीक है, प्लेस खत्म हो गई। दूसरी बात आपको फीस नहीं देनी पड़ेगी। USDT एक कॉइन है, USD है, US डॉलर, एक USDT है, ठीक है, वो क्रिप्टो का डॉलर्स होता है, उसको हम लोग रखते हैं स्टेबल कॉइन के लिए, जैसे हम लोग परचेजिंग करते हैं। तो वो आप बिटकॉइन से आपने कन्वर्ट उसमें किया, आप उसको निकाल सकते हो, आपको $1 फीस लगेगी, आप जितने भी पैसे निकाल लें $1 फीस। एंड द USDT इज tethered to the US dollar. यस बिल्कुल। तो वो आप हाँ सेम होती है उसकी वैल्यू, ठीक है। तो $1 आपकी फ़ीस लगेगी। अभी मैं यहाँ से अमेरिका पैसे भेजूँगा 1 लाख रुपए, 15,000 20,000 कहीं नहीं गए, फीस में लग गए, और दिन भी लग गया, आधा दिन 1 दिन लग गया, क्योंकि फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज होते हैं, हाँ, बैंक वगैरह। हाँ अब लेकिन अभी वो आप भेजेंगे, मैं 1 सेकंड लगेगा, अभी फ़ोन से ट्रांसफ़र करूँगा। मैक्सिमम USDT ट्रांसफ़र करने में आपको लगते हैं 1 से 1.5 मिनट, उसके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, वो 2 मिनट में अपने अकाउंट में निकाल सकता है, $1 फीस लगेगी। तो आप फीस आपकी कट नहीं रही है, आपका टाइम डिफरेंस खत्म हो रहा है, और आप अपना पैसा आप ओन कर रहे हैं, किसी को नहीं पता कितना ओन कर रहे हैं, कभी भी निकाल सकते हैं, कोई आपके बीच में नहीं आएगा, क्यों निकाल लो। हाँ, तो that's the other thing ना, where people don't get to tell you what you do with your money because it's yours, right? Yes, it's yours. अच्छा, अब इसमें ना एक काउंटर आर्ग्यूमेंट जो मुझे भी शुरू में दी जाती थी कि जो रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं, they make sure कि this money is not used for bad things, right? तो उस पर मेरा हमेशा यही नुक्ता नज़र रहा है कि जो नई टेक्नोलॉजी होती है ना, फिर आप कैमरा फ़ोन्स यूज़ कर लो या कुछ भी, कोई भी नई टेक्नोलॉजी, न्यूज़पेपर पहले, प्रिंटिंग प्रेस पहले, या प्रिंटिंग जो भी, व्हाटएवर वाज न्यू वाज फर्स्ट यूज्ड बाय फ्रिंज ग्रुप्स इन सोसाइटी, जो क्रिमिनल्स होंगे, जो गंद करेंगे, जो भी। जैसे अभी भी एक आर्ग्यूमेंट ये होती है कि भाई क्रिप्टो क्यों रखना है, डार्क वेब से कुछ गंद खरीदना है आपको, यू नो। पर आई थिंक वही वाली बात है कि इस चीज़ को लेजिटिमाइज करने से वो चीज़ ख़त्म होती है। बिल्कुल। इसको जितना आप कम करेंगे, हाँ, एलियनेट करोगे, जितना आप और फ्रिंज ग्रुप्स के दे दोगे, उतना वो ज़्यादा होगा, राइट? एब्सोल्युटली। सो जितना आप इसको वैलिडेशन दोगे, जितना आप इसको लेजिटिमाइज करोगे, उतना वो चीज़ होगा। बिल्कुल। और लोग बोलते हैं कि फंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं बाहर, इलीगल पैसा आप इधर से उधर भेज सकते हैं, अमेरिका से पाकिस्तान ला सकते हो। तो अब अमेरिका में लीगल है, अमेरिका हमसे अच्छी इकोनॉमी में और अच्छा है हमसे, जो कि फैक्ट है। तो अब अमेरिका ने लीगल करा हुआ है, तो उनको तो सब पता होगा ना कि जो इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है उन्होंने करा हुआ है, क्योंकि वो दुनिया से पीछे नहीं रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं हर आदमी कमाए, हर आदमी होल्ड करे, मैक्सिमम बिटकॉइंस हमारे पास हों, क्योंकि उनको पता है उसका फ़ायदा है। हम लोग ये नहीं करते हैं, नहीं, हम लोग गवर्नमेंट, हम पाकिस्तानी ये नहीं करते हैं, हम तो नॉलेज भी हासिल नहीं करते हैं उसकी। काफ़ी लोग अभी हमारी पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनको नहीं पता बिटकॉइन है क्या, सही, बस पता है बिटकॉइन है, क्यों। ऑल्सो ये भी एक और चीज़ है, because the thing is this is haphazard because this is not a video. मतलब वो आप कभी बना लेना to educate people about crypto and all those things. Ramesh is doing wonderful work there. Waqar Zakka you mentioned is brilliant obviously, माशाल्लाह से। लेकिन you know people need to find out also कि एक और one of the other strengths of Bitcoin और cryptocurrency generally इसकी, क्योंकि वो blockchain पे होता है, बिल्कुल, तो ये पैसे कभी गुम नहीं हो सकते, you know, so मतलब हर चीज़ की मनी ट्रेल है कि कहाँ से कहाँ गया पैसा, पूरी सब कुछ आपके पास, ट्रांजेक्शन सब है। हाँ, बिकॉज इट्स कॉल्ड द ओपन लेजर फॉर दैट रीजन, बिकॉज देयर इज, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मैंने रायान को शायद पैसे मैंने मशकूक ज़रियात के थ्रू जो है हासिल किए, और मैंने जो है कुछ ख़रीदना चाहा, मैंने रायान को वो पैसे भेज दिए, तो कैश जो फिएट करेंसी होती है हैज़ अ टेंडेंसी टू डिसअपियर। बिल्कुल, वो गुम हो गया, ब्रो, क्या हो गया, कहाँ से, कुछ नहीं है, कोई मसला नहीं, टैक्स नहीं दिया। बट यू कैन नॉट डू दैट विद दिस, बिकॉज इट डजंट मैटर हाउ मच आई ट्राई टू हाइड इट, देयर विल ऑलवेज बी दैट ट्रेल। मशीन्स है ना, मशीन्स गलती नहीं करेंगी। हम कर सकते हैं, हम पैसे उधर कर सकते हैं, लेकिन मशीन नहीं कर सकती गलती। उसको पता होगा किसने कब भेजा, वो लिखा हुआ है। इथीरियम जो है उसके ईथ स्कैन है, जो वेबसाइट होती है, आप $1 भी भेजेंगे ना, वो ज़िंदगी भर उस पर रहेगा कि आपने इस वॉलेट से इधर भेजे थे, 100 साल भी आगे चले जाएं, वो पुराना दिखाएगा 100 साल पहले इस वॉलेट से इस वॉलेट में $1 गया था। तो वो कुछ भी नहीं हो सकता कि इधर उधर पैसे चले जाएं। ओके, सो आई होप दैट्स इनफ ऑफ एन इंट्रोडक्शन टू व्हाट क्रिप्टो इज। हाउ डिड यू मेक योर मिलियन? अच्छा, काफ़ी लंबी कहानी है। मैं जब बताया था 10 साल का था, मैंने थोड़ा नॉलेज हासिल किया क्रिप्टो का, लेकिन उसके बाद बिटकॉइन बनाए थे, दे गॉट लॉस्ट। उसके बाद फिर मैंने 3 से 4 साल पहले क्रिप्टो में थोड़ा, पहले एक मैंने
मतलब मेरी फैमिली बैकग्राउंड उस वक्त कोई स्ट्रॉन्ग नहीं था। जब मैं पैदा हुआ था तब भी हम लोग मेरा एक और भाई तो बड़ा मुझसे, मम्मा पापा हम लोग बाइक पे ही ट्रैवल करते थे, कोई गाड़ी भी नहीं थी उस वक्त। एंड दिस वाज इन कराची? यस, इन कराची। मैं इधर ही पैदा हुआ था। अब मैं इस्तांबुल में रहता हूँ लेकिन मैं इधर पैदा हुआ था और अभी भी गया था इस्तांबुल, 3 साल पहले ही गया हूँ। तो मतलब कोई फैमिली ऐसा सपोर्ट नहीं था कि वडीरा का या कोई ऐसे पैसे वालों का बेटा है। मैं नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ थी जैसे सबकी है यहाँ पे। उसके बाद मैं 14-15 साल का था 3 साल पहले, अभी मैं 18 साल का हूँ। तो उस वक्त मैंने $100 से अपने फादर से लिए थे कि मुझे कुछ करना है स्टार्ट, मैं चाहता हूँ मैं अपने पैसे बनाऊँ। और उन लोगों को पता नहीं था क्या होता है बिटकॉइन, फालतू में पैसे डूब जाएंगे, ये क्या है, पहले भी आ चुके हैं, वही मैंने सब सुना। उसके बाद फिर मुझे मतलब मैं पढ़ाई में फोकस नहीं करता ना, मैं एजुकेशन सिस्टम सपोर्ट करता हूँ यहाँ पे। उस पर बाद में डिबेट सपोर्ट ही नहीं करते हो? अच्छा, बाद में डिबेट करेंगे, बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट हाँ, टॉपिक हाँ, है जो मैं करना लाजमी है। तो लेकिन अभी तो उसके बाद फिर थोड़ा पढ़ा, लेकिन मुझे कोई ऐसी मतलब मैं डिग्री तो नहीं थी कि मैं जॉब करूँ। तो मैंने ऑनलाइन एक ग्रुप ढूंढा, मुझे क्रिप्टो की नॉलेज थी, नॉलेज फ्री में भी मिल सकती है, ठीक है। तो मैंने नॉलेज हासिल करी, फिर मैंने उस पेड ग्रुप के साथ जॉब ज्वाइन करी, वहाँ पे मैंने लोगों को सिखाया। उसके बदले मुझे पहले महीने मुझे 50,000 पाकिस्तानी मिले थे, 50 के। At what age? At 16? यस, 15-16। That's good, dude. यस, That's good, वो माशाल्लाह। सैलरी थी मेरी, ठीक है। उसके बाद वहाँ से मुझे वो मिले $100 मैंने फादर से लिए थे, उससे मैं सीख रहा था। वो पहले की बात है, 1 साल। $100 से मैं सीखा, वो ख़त्म हो गए थे, हार गया सारे पैसे में। फिर मैंने सैलरी की मुझे मिली 50 के, उससे मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी। साथ में मैंने जॉब नहीं छोड़ी, मैं कमा रहा था अच्छे पैसे, मैंने काफ़ी उसको टर्न 50,000 को काफ़ी बना लिए थे। लेकिन फिर मुझे सैलरी मेरी इंक्रीज़ हो गई, 1 से 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए मुझे मिलते थे महीने के। लोगों को सिखाता था मैं। उस ग्रुप का को फाउंडर भी था, रह चुका हूँ, मतलब मैंने एक ग्रुप फाउंड किया। You want to name the group? नास कैपिटल नाम है। नास कैपिटल अभी भी है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, वो पेड ग्रुप है, जो क्रिप्टो सीखना चाहते हैं वो परफेक्ट ग्रुप है सीखने के लिए। अब तो मैं इस ग्रुप के साथ नहीं हूँ ज़्यादा, क्योंकि मैं अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरे कोलीग्स हैं वो सिखाते हैं। उसमें नास कैपिटल इस ग्रुप का नाम है। बंदा फेसबुक पर सर्च कर सकता है। Okay, nominal fees? बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल है। बंदा $6 है। $6 क्या होता है, आप तो यूँ बना लोगे क्रिप्टो में आकर $6। तो उसका ये फ़ीस है। फेसबुक पे क्रिप्टो सिग्नल्स बाय जाहिद नाज है, या नास कैपिटल, वो चेंज हो गया नाम। तो इस तरह फिर मैंने वो सैलरी मिलती थी, वो फाउंडर थे, उनका नाम था जाहिद नाज। बहुत सपोर्टिव रहे हैं, उनकी वजह से मैं जो भी आज हूँ। उन्होंने मुझे सैलरी दी, मैं करते रहा लोगों को सिखाते रहा उनके साथ। फिर मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट कर ली अपनी। तो उसके बाद फिर मैं पैसे बनाते गया, ट्रेडिंग से करते गया। When you say trading, यस, explain that. ट्रेडिंग मतलब फॉर एग्जांपल एक कॉइन है जो रोटेट कर रहा है $10 पे। जैसे कि एक एप कॉइन है, इसके ये भी एक मैं सबको टिप देकर जाऊँगा कि एक कॉइन बाय कर सकते हैं सबके लिए, सही है। अभी कुछ नहीं, वो बाद में बात करेंगे। अभी एक एप कॉइन है, AP नाम है उसका। वो फॉर एग्जांपल वो $10 पे ट्रेड कर रहा है, मतलब उसकी वैल्यू इस वक्त $10 है। तो मैंने उसको $10 का बाय किया और मैंने उसको थोड़ा चार्ट ट्रेडिंग करी कि इसकी सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। ये थोड़े डिफिकल्ट वर्ड्स हैं कि मुझे लग रहा था, मतलब मैंने थोड़ा स्टडी करा चार्ट को उस कॉइन के कि ये कॉइन ऊपर जाएगा। तो मैंने उसके $10 का ले लिया और जैसे ही वो $20 का हुआ मैंने उसको बेच दिया। अच्छा, अगेन लेट्स एक्सप्लेन। चार्ट जो होता है इज द ट्रैजेक्टरी ऑफ द कॉइन। बिल्कुल, ऊपर नीचे जो कैंडल्स होती हैं, सही, ठीक है। उसको उसकी बड़ी स्टडी होती है, वही पेड ग्रुप में सिखाते हैं। फिर आप खुद ही सीख जाते हैं, तो फिर आप ट्रेडिंग खुद ही करते रहते हैं। वो इंपॉर्टेंट है। किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आपने गए और आपने खरीद लिया, ये नहीं करना। 2 मिनट में आपके पैसे जाएंगे। बहुत वॉलेटाइल है क्रिप्टो मार्केट। स्टॉक मार्केट हफ्तों और महीनों में 1 से 2% बढ़ती है, क्रिप्टो मार्केट दिन में 100% बढ़ जाती है, सही, ठीक है। तो बहुत वॉलेटाइल मार्केट है, पहले स्टडी करें। जल्दी कहीं नहीं, मार्केट कहीं नहीं जा रही है। तो इस तरह से तो आप $10 का मैंने कॉइन लिया, $100 मेरे पास थे इन्वेस्टमेंट, तो मुझे 10 कॉइन मिल गए वो $10 की प्राइस पे, ठीक है। थे आपने? नहीं, ऐसी एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं बताऊंगा मैं। तो मुझे 100 कॉइन मिल गया, 10 कॉइन मिल गए $10 के। मैंने 20 के बेचे, वही मेरी इन्वेस्टमेंट $100 से $200 हो गई, तो मैंने उसको बेच दिया। ये होती है बेसिक ट्रेडिंग। मैंने 10 का लिया, 20 का बेचा, मुझे $100 प्रॉफिट हो गया। तो इस तरह होता है। जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने इथीरियम लिया था। इथीरियम बहुत अच्छा कॉइन है। बिटकॉइन के बाद जो सॉलिड कॉइन है इथीरियम है। सही, फेयर। इसकी वैल्यू भी टॉप उसने मारा था 4,000-5,000 तक का। हाँ, मैक्सिमम 5,000 कुछ किया था, 4,900-700 कुछ। और अभी भी इट्स 2,800। हाँ, वो काफ़ी अच्छा क्रैश हुई ना मार्केट 2-3 दिन से, तो दैट्स ओके। अब काफ़ी लोग होते हैं वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। अच्छा, मेरा जो ग्रुप था ना उसमें मेरे पास लोग आ जाते थे कि यार मैंने अपनी बाइक बेच के पैसे लगा दिए थे और मैं सुसाइड कर रहा हूँ। मैंने बोला मैं क्या करूँ यार, अब मैं जितने दे सकता था मैं देता था। उस वक्त मैं थोड़ा इतने पैसे नहीं थे, तो मैं जब स्टार्टअप लिया था। आई थिंक सुपर इम्पोर्टेंट इफ पीपल नीड टू टेक अवे वन थिंग, इट्स दिस: you should not trade money that you cannot afford to lose. बिल्कुल, you cannot. Please, this is not financial advice. We're just two people talking about cryptocurrency, right? No financial advice at all. Nothing. We're just talking about projects and crypto and all those things. एक चीज, this is advice. This right now what I'm going to say: do not trade with anything that you cannot afford to lose. बिल्कुल, right? And if that's $5, trade $5, right? जितना आप लूज कर सकते हैं, बिल्कुल, जितना आप लूज करें उतना आप लगाएं। आपको बुरा नहीं लगे इतने पैसे आते हैं, भाई आपको कोई लॉस ना हो। नहीं,
लोग आते हैं बाइक बेच के, अल्लाह रहम करे घर बेचे हैं लोगों ने। मेरे पास मैसेजेस पड़े, मैं बहुत पुराने, आप शायद नहीं देखे, डिस्कॉर्ड पे। वो बोल रहे हैं मैंने अपना घर बेच दिया और अब मैं सुसाइड कर सकता हूँ और मैं कुछ नहीं कर अल्लाह सकता। रहम करे ब्रो। क्यों, मतलब क्यों ब्रो? तो उस वक्त भी उस ग्रुप पे जी यू वर ऑब्वियसली सेइंग दिस ना कि नो हम लोग हमारे ग्रुप का रूल है, आप जब ग्रुप ज्वाइन करेंगे ना तो पहला जो सेक्शन खुलता है वो रूल्स होते हैं ग्रुप की। तो सबसे पहला रूल है नो फाइनेंशियल एडवाइस। नो फाइनेंशियल एडवाइस। एंड दूसरा ये भी ज़रूर है, आई एम श्योर होगा इन द नोमेनक्लेचर कि भाई डू नॉट ट्रेड विद मनी दैट यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज। हाँ, या उधार के पैसे, बिल्कुल नहीं, उधार के भी नहीं, बिल्कुल नहीं। बिकॉज देखो so many people, अभी भी हम जैसे बात कर रहे हैं माशाल्लाह से, your story is inspiring obviously. People will think about the fact, yeah, this is a quick get rich quick scheme. No, it's not. It's not at all. Because the thing is, again, you didn't get rich quick. You were the youngest, but आपने अपने आप को 5 साल educate किया. बिल्कुल, it took 5 years. Yeah, it took 5 years of just education. Yes. You know, अब ये किसी की मतलब ये खैर आप शायद आपकी किस्मत है अल्हम्दुलिल्लाह कि you had the wherewithal to start at a young age. बिल्कुल। But आई मीन इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है, यू नो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग कूद जाएं गाड़ी वाड़ी पे, अल्लाह रहम करे, डोंट डू दैट। टाइम लगा ले थोड़ा सा, क्या कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम 2 महीने 3 महीने आप सीखो, फिर आप लगाओ पैसे जितने लगाते हो कि आपको अपने पर श्योरिटी होगी कि मैं लॉस नहीं करूँगा। और जब भी आप, जैसे मैं एक्सपर्ट हूँ एक तरीके से क्रिप्टो का, NFTs का भी अब हो गया हूँ, लेकिन क्रिप्टो का मैं ज़्यादा अच्छा हूँ, साफ बात है, काफ़ी टाइम से किया। फिर भी मुझे पता होता है कि 80-20% है, 80% प्रॉफिट, 20% रिस्क हो सकता है, क्योंकि मार्केट इज़ अनप्रेडिक्टेबल, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सही, ठीक है, क्योंकि अभी वेल आई, एक वेल उसको बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा होता है बिटकॉइन क्रिप्टो में, उसको हम वेल बोलते हैं। जैसे 1000 बिटकॉइन या जैसे $300 मिलियन किस बंदे के पास हैं, उसे सेल कर दिया। मैंने चार्ट पढ़ लिया था, मुझे लग रहा था कॉइन ऊपर जाएगा, लेकिन अच्छा एक और बात सबको बतानी चाहिए कि कॉइन ऊपर कब जाता है, जब उसमें इन्वेस्टमेंट आती है, कॉइन में पैसे आएंगे, वैल्यू कम होगी, सप्लाई कम होगी, डिमांड बढ़ेगी, तो इससे कॉइन ऊपर जाता है। सिंपल है, आप कॉइन बाय करते हैं ना जब लोग, तो कॉइन ऊपर जाता है, और जब वो सेल करते हैं तो वो नीचे आता है। ठीक है, तो एक फॉर एग्जांपल मैंने पूरे चार्ट रीड कर लिया और ये कॉइन जो है बिटकॉइन फॉर एग्जांपल ये ऊपर जाएगा क्योंकि इसने ये कर लिया चार्ट में, ठीक है, ये सब हो गया, रेजिस्टेंस ने तोड़ दी, ये कैंडल इस तरह बन रही है, ये ऊपर जाएगा। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन एक वेल आई, उसने $300 मिलियन का बिटकॉइन बेच दिया। वेल बेसिकली आप बहुत एक अमीर इंसान को, उसके पास ज़्यादा क्रिप्टो होल्डिंग्स है, उसने एकदम $300 मिलियन फॉर एग्जांपल बेच दिए। तो मेरी सारी रीडिंग तो ख़त्म ना, मैंने तो सोचा था कि यार पैसे बनाने वाला हूँ, लेकिन वो गिर गया। तो ये भी होता है क्रिप्टो मार्केट में, स्टॉक्स में। तो ये सब चीज़ों से ख्याल रखना पड़ता है। पहले बंदा सीखे आराम से, फिर वो कमाएगा ईजी। तो ये मोटिवेशनल बात है कि मैंने जब कर लिया तो हर कोई कर सकता है, लेकिन सीखने की बात ब्रो ये भी है। लेकिन आई मीन डोंट सेल योरसेल्फ शॉर्ट, मे बी आप में कुछ ऐसा हुनर है जो दूसरे लोगों में नहीं हो सकता है, ये भी हो सकता है, अल्लाह रहम करेगा। तो अच्छा, सो नाउ you're 16, you're trading in Bitcoin or crypto, and that's basically how you make your million. Yes, right? Yes. And उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि उसके बाद मैं बनाते गया मिलियन, मैंने 16 साल की उम्र मारा था। उसके बाद फिर लॉस भी हुए थे, फिर वापसी मिलियन बना, फिर मिलियन से ऊपर भी गया, $1 मिलियन। हाँ ठीक है, हाँ PKR नहीं, बंदा बना लेता है। चल ब्रो, हर तो नहीं, लेकिन अल्लाह रहम करेगा, काफ़ी बना लेते हैं। हाँ, क्योंकि वैल्यू गिर रही है ना पाकिस्तान पे PKR की। तो मैंने बनाया, उसके बाद मैंने ये सोचा है कि अब मैं NFT प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, क्योंकि अब जाहिर सी बात है मैं 10 मिलियन पे नहीं रहूँगा ना, मैंने आगे भी बढ़ना है ज़िंदगी में, मैंने और चीज़ें करनी है, फैमिली को सपोर्ट करना है और करना है जितना कर सकता हूँ। तो इस तरह अब मैंने सोचा ये मेरा NFT। अब एक और NFTs क्या होता है, NFTs पे आ जाते हैं। बिल्कुल आते हैं। क्रिप्टो के चैप्टर को आई थिंक हमने वी हैव समराइज्ड इट वेल इनफ, वेयर डिस्कस कर लेंगे। बिल्कुल हाँ, बट क्रिप्टो एंड क्रिप्टो ट्रेडिंग एसेंशियली इज व्हाट यू डिड टू गेट योर मिलियन। बिल्कुल परफेक्ट। अगेन बेयर इन माइंड कि यहाँ पे देयर इज नो रियल लॉ in Pakistan around, unfortunately there's no conventions, there's no law, and we're basically in limbo. Yes, बिल्कुल। And Binance एक trading site application है, but again educate yourself first, फिर Binance पे आना, इस तरीके से मस्ती नहीं करना। बिल्कुल हाँ। कितने सारे ग्रुप्स हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप $6 नहीं निकाल सकते तो आप आहिस्ता से यूट्यूब से सीख सकते हैं, फिर $6 बनाकर ग्रुप ज्वाइन कर लें। तो अच्छा हाँ, टेल मी the best one to join is ये वाला? I guess because again I would like to mention Ramesh here. Ramesh NFT Buzz जो चैनल है उसका, बिल्कुल परफेक्ट, फ्री में वहाँ पे भी कंटेंट है। बिल्कुल, लेकिन वो NFTs में क्रिप्टो की बात कर रहा है। NFTs में तो रामेश बिल्कुल परफेक्ट, रामेश भाई ने अच्छा काम किया। So and then so yeah, there's ample information available online. Yes, बिल्कुल। Okay, I think I've said this enough. अब खामखाई पैरानॉइड हो रहा हूँ मैं। चलो, so क्रिप्टो हो गया, and फिर NFT का क्या सीन है? NFT का सीन ये है कि NFT भी क्रिप्टो से मिलता जुलता है। ऐसे है कि वो जिससे ख़रीदते हैं ना, वो इथीरियम होता है। इथीरियम क्रिप्टो कॉइन है, हम NFT खरीदते हैं इथीरियम से या सोलाना से।
ठीक है. Only two. Yes, Interesting. अभी. There's no third. नहीं अभी तक नहीं. हम जो अच्छे NFTs बड़े NFTs हैं उनकी बात कर रहा हूँ. किसी ने अपना निकाल लिया होगा किसी और कॉइन से, लेकिन जो बड़े NFTs हैं उनकी बात करूँगा, जो नॉर्मल है NFT स्पेस में. तो आप या तो इथीरियम से या सोलाना से बाय करते हैं. सोलाना भी एक कॉइन है जिस तरह बिटकॉइन है, और इथीरियम भी उसी की तरह कॉइन है एक. ठीक है. तो NFTs का फुल फॉर्म होता है नॉन फंजिबल टोकन. आसान लफ्ज़ों में आप बोलें तो ये जैसे एक पिक्चर मैंने अभी क्लिक करी, उसका ओनर मैं हूँ क्योंकि मैंने क्लिक करी, मेरे पास थी वो. अब एक बंदा उसका स्क्रीनशॉट लेता है और अपने प्रोफाइल पर डालता है. उसका मतलब ये नहीं कि वो पिक्चर उसकी है, वो पिक्चर है मेरी, मैं उसके ऊपर कॉपीराइट कर सकता हूँ, उस पर केस भी हो सकता है क्योंकि ये तो उसने स्टील करी ना मेरी प्रॉपर्टी. वो मेरी प्रॉपर्टी, मेरी एसेट है जो मेरी पिक्चर है, उसने स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास डाल दी. तो मतलब मेरी एक पिक्चर है, वो मैंने क्लिक करी, वो मेरी है, तो कोई स्क्रीनशॉट ले लेगा, उसका ये मतलब नहीं उसका ओनर वो है. तो NFTs को बोलते हैं योर डिजिटल एसेट. बिल्कुल. तो NFT दुनिया में एक होता है, मतलब एक पिक्चर एक ही है. ओके. अब एक पिक्चर दो तो नहीं हो सकती ना, वो स्क्रीनशॉट के बाद दो होंगी या सेव करने के बाद. बिल्कुल एक्यूरेट एक पिक्चर एक ही हो सकती है दुनिया में. ठीक है. तो उसको हम बोलते हैं NFT कि वो एक पिक्चर वो मेरी है. उसको अब NFT ट्रेडिंग होती है इस तरह बिटकॉइन की ट्रेडिंग होती है. NFTs में मैं बताते चलूँ कि NFTs अगर आप करना चाह रहे हैं बिल्कुल करें, परफेक्ट लाइक क्रिप्टो. लेकिन अब तो NFT ज़्यादा हाई पे क्रिप्टो से है, तो मैं इसलिए NFT पे स्विच हो गया हूँ. जहाँ पे हाई पे वहाँ चले जाओ. तो NFTs का मैं बेसिकली स्टार्ट करता हूँ बताना. NFTs नॉन फंजिबल टोकन. आप जब बंदा पहले आता है NFT में या क्रिप्टो में, पहले वो अपने आप से पूछे कि मैं क्यों आ रहा हूँ, तो उसकी 3 जवाब हैं. उससे भी पहले NFT जो है, बिल्कुल, you said if I take a picture, yes, that's your picture, huh? That's my picture. And there's only one of that. I am the owner. One owner. And then if I buy it Yes, as an it's NFT, yours. then is it mine or do I buy an impression? No, you buy the picture. It's yours. Ooh. इसलिए ये ट्रेडिंग होती है. Okay. ठीक है. तो वो पिक्चर अब मेरी नहीं रही, वो आपकी आ गई, वो आपको मिल गई. वो ये सब इथेरियम ब्लॉकचेन पे चल रहा होता है. वो हम नहीं समझ सकते, वो पूरी एल्गोरिथम, वो न्यूमेरिक जो होता है ना, कोडिंग, ये सब पीछे हुआ है. No, but like ownership transfer. बिल्कुल ओनरशिप ट्रांसफर. वाज़ेह अल्फाज में ओनरशिप फिर मेरी हो गई. बिल्कुल ऐसा I ही can है. buy that photo and then it's no longer yours. No, it's not mine. I get money in return. हाँ, obviously. वो आर्ट के हिसाब से होता है. ठीक है. तो अब NFTs में आने की 3 वजह मैं बताता हूँ. पहली कि आप प्रॉफिट कर सकते हैं, इमेंस प्रॉफिट कर सकते हैं. Sure. और नॉर्मल प्रॉफिट भी कर सकते हैं. तो पैसे कमाने के लिए आप आ गए NFT में. दूसरा रीज़न ये है मेटावर्स, डिजिटल वर्ल्ड जो है. अब आप फॉर एग्जांपल आपको पता है डिजिटल वर्ल्ड क्या है? मुझे तो पता है लेकिन बताओ आप. मेटावर्स ये होता है कि जैसे हम लोग अभी इस दुनिया में हैं, फिजिकली बैठे हुए हैं. मेटावर्स एक डिजिटल दुनिया है जिसमें आप बैठ सकते हैं आमने सामने. फिजिकल नहीं होगा लेकिन फील्स लाइक फिजिकल. वेब 3.0 होगा. अभी हम लोग जो है ना वेब 2.0 है, इसमें गूगल आ गया, एप्पल आ गया, ये सब आ गया, यूट्यूब आ गया. ये वेब 3.0 पे आप लोग जा रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं अपने आप को. वो डिजिटल वर्ल्ड है. आप सब कुछ मतलब आपके सामने हो रहा होगा, इस तरह होगा, रियल फीलिंग आएगी. ठीक है. तो वेब 3.0 ये होता है, उसमें डिजिटल वर्ल्ड है जिसको हम बोलते हैं मेटावर्स. मैंने 3 अटेंड किए हैं वहाँ ब्लॉकचेन की मीटिंग्स, और बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप सामने ही बैठे हुए हैं, सेम टू सेम. ठीक है. तो उसके लिए आपको VR होता है, इसका नाम मैं भूल गया, क्या बोलते हैं उसको, वर्चुअल रियलिटी गॉगल ना. हाँ, उसका एक स्पेसिफिक नाम है जो आजकल बड़ा ट्रेंड पे. VR तो कंपनीज होती है ना. बिल्कुल, एब्सोल्युटली वही नाम है उसका. अच्छा. ठीक है. उसको आप लगाते हैं, उसके थ्रू आप मेटावर्स में जाते हैं. ठीक है. उसमें फॉर एग्जाम्पल आपकी पॉडकास्ट है ना, तो आपने अपना एक लैंड बाय किया हुआ है, उसमें आपने पूरा ऐसे रहना. अच्छा, अगेन लैंड इन द मेटावर्स. So yes, none of this is physical. None of this exists. No, but it does. It does. On at the same time. सोच यार, मेरी उम्र बहुत हो गई है. चल हाँ सही है. हाँ. तो ठीक है. तो इस तरह आपने अपना ये पूरा आपने एक लैंड खरीदा, उसको आपने सेम टू सेम इस तरह बनवा लिया डिजिटल आर्टिस्ट से. ठीक है. वो बना लेता है. उसके बाद क्या होगा कि आप पॉडकास्ट करेंगे, आप मुझे बुलाएंगे, मैं उस तरह VR में एंटर हूँगा, मैं चलते हुए आऊँगा, इधर बैठ जाऊँगा. मैं अपने कमरे के अंदर ही पूरी एक सर्कल बनाऊँगा पहले खुद ही, उसके थ्रू VR के थ्रू. उसके अंदर ही मैं आऊँगा, लेकिन ये सारे काम हो रहे होंगे. चल रहा हूँ इसके अंदर ही. ठीक है. फिर मैं आपके यहाँ पे बैठूँगा, इसी तरह आप मेरे सामने बैठे होंगे और बिल्कुल रियल लगेगा. ठीक है. तो हम आ गए वेब 3.0 पे. 2.0 पुराना रह गया कि आप कॉल्स कर रहे हैं फ़ोन के अंदर, हम आमने सामने बैठे हैं. ठीक है. तो मेटावर्स के अंदर लैंड प्रॉपर्टी बाय करनी होती है, सब करें. अच्छी इन्वेस्टमेंट है. मैंने बाय की हुई है. आपने की हुई है? अच्छा. ज़्यादा बड़ी नहीं करी अभी. सही है. लेकिन सो NFTs हाउ डू दे फैक्टर इन? हाँ, ये परफेक्ट. तो NFT जैसे अभी आप बैठे हुए, आपका एक वजूद है, आप इस तरह दिखते हैं. ठीक है. NFTs में जाएंगे तो आप उधर भी कुछ होगा, आपका वजूद एविटार होगा, तो वो NFT होगा. समझ रहे हैं? हाँ. तो अब NFT मार्केट से कनेक्टेड इस तरह आ गई कि जितने आप मतलब आसान तरीके में बता रहा हूँ मैं सबको, ताकि शुरू स्टार्टअप है. तो इस तरह आप समझें कि वो एविटार होगा, वजूद जो होगा. अब फॉर एग्जांपल आप देखिए मेटावर्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा. अब बहुत कम लोग होंगे जो अभी भी टच फ़ोन के अलावा वो बटन वाले फ़ोन यूज़ करते हैं, नहीं करेंगे क्योंकि एडॉप्शन ज़रूरी है, आप पीछे रह जाओगे. तो मेटावर्स में भी आपकी एडॉप्शन आएगी, आपको उधर जाना पड़ेगा. सो लेट्स अगेन ब्रेक दिस डाउन अ लिटिल बिट. से आई बाय दिस लैंड, ठीक है ना, एंड देन आई गेट artist X to design the studio for me. Cool. Now I have a studio in the metaverse. Yes. Is this mic an NFT? Digital things. Okay. Only.
वो NFT होगा. Okay. जो डिजिटली होगा ना उसको हम NFT बोलते हैं, नॉन फंजिबल टोकन. Stuff that you can interact with in the metaverse. लाइक ऑडियो इज एन NFT. ऑडियो, पिक्चर, वीडियो जो भी डिजिटल है ना वो हमारा होगा. Okay. लेकिन मेटावर्स में आपका माइक हो सकता है. हाँ. वो NFT आई डोंट थिंक सो बना सकते हैं NFT. आप माइक का भी NFT बना सकते हैं, आर्ट. तो उस तरह वो भी हो सकता But है. it needs to be unique. यस. तो जैसे वो अल्लाह रहम करेगा लिखा हुआ है साइन, that can be an NFT. यस. Okay. वो बना सकते हैं. NFT कुछ भी हो सकता है. NFT आप मैं भी बैठे आपकी पिक्चर लूँ, वो भी NFT है एक. Okay. मैं ये बना लूँ, जो आर्टिस्ट वो बनाते हैं, ये पूरा स्टूडियो NFT हो जाएगा. ठीक है. इस तरह वहाँ पे लैंड होगा, वहाँ पे हम लोग आपस में बैठ सकते हैं. अब फॉर एग्जाम्पल अब एडॉप्शन करनी पड़ेगी मेटावर्स की, क्योंकि अब 100 लोग मेटावर्स में आ रहे हैं, एक को भी जाना पड़ेगा जो नहीं जाना चाह रहा. ठीक है. इंटरेक्ट करने के लिए. तो फॉर एग्जाम्पल आगे जाकर 10 से 100 करोड़ लोग होते हैं जो कि मेटावर्स में जा रहे हैं. उसका मतलब है 10 से 100 करोड़ NFTs चाहिए आपको. एवेटार चाहिए. तो जब 10 से 100 करोड़ NFTs बनेंगी तो ऑटोमेटिकली NFT की हाइप बढ़ जाएगी, वैल्यू बढ़ जाएगी. तो अभी जो है ना परफेक्ट टाइम है NFTs में आने का, क्योंकि इसकी वैल्यू जैसे बिटकॉइन हमने मिस कर दिया $10 पे. हम लोग सब जो जानता है ना बिटकॉइन को सब रोता है कि क्यों मिस कर दिया. उस तरह आप NFT मिस करेंगे अगर आप अभी नहीं आए, क्योंकि अभी इसकी वैल्यू नहीं है ना. नहीं, अभी भी कुछ NFTs बिल्कुल. बोर्डे प्रोजेक्ट है, उसकी मिनिमम NFT 100 इथेरियम की है, जो कि इस वक्त बनते हैं 4 करोड़ रुपये. 4 करोड़ रुपये. 10,000 NFTs में से सबसे सस्ती जो NFT है ना, फ्लोर प्राइस बोलते हैं उसको. फ्लोर प्राइस या जी, वो इस वक्त 4 करोड़ रुपये की है. और ये आप सोचो कि जो हमारे से बड़े जनरेशंस हैं उनके ज़हनो गुमान में हम किस तरीके से ये बिल्कुल इंट्रोड्यूस करें. ये बहुत मुश्किल चीज़ है कि ब्रो इट्स नॉट अ फिजिकल थिंग. चलो हम 4 करोड़ रुपए लगा दिए हमने. It's not a physical thing. It can get you physical benefits. Yes. It can. Yes, a it bored can, ape, of course. NFT can, right? Or a mutant ape for that matter, जो भी. But it's not a physical. Like मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आया. कुछ भी नहीं है. तो हम तो समझ रहे हैं. हम लोगों ने पढ़ा, हम लोग एजुकेट हुए इस बारे में. लेकिन मैं अगर अपने दादा या नाना को बताऊंगा नहीं समझेंगे. बोलेंगे ये क्या कार्टून है. तो वो हंसेंगे मेरे ऊपर. और हंसते हुए काफ़ी लोगों को दिखाऊंगा, ये हंसते हैं. मैंने बोला हाँ हंसते रहो, आपका लॉस, इसमें मेरा कुछ नहीं है. सही है. तो यही है. तो नहीं समझ आता उन लोगों को, और काफ़ी मुश्किल है समझाना, क्योंकि वो थोड़ी पुरानी जनरेशन है. जनरेशन गैप आ जाता है बीच में, वो तो जाहिर सी बात है. ठीक है, fair. Okay, so those are basically NFTs, and you have now. You're ready to launch your NFT project. Yes. It's ready to go? It's ready to go, but I will take 2 months. To I have to market get it. an audience, yes. Okay, inshallah. What's it called? जी. What's the project called? It's Ballers Club ETH. Okay. On Twitter, Ballers Club ETH. ETH. वो आप डाल देना नीचे अगर आप उसमें डाल सकें. नहीं मैं तो डाल दूंगा इंशाल्लाह. हाँ वो लिंक विंक तो मैं आप मुझे दोगे, मैं डाल दूंगा. लेकिन हाँ tell me about this project now. ठीक है. Ballers Club ETH है, उसका मैं आर्ट दिखाता हूँ पहले सबसे. सही है. आर्ट आप खुद बना रहे हो? आर्टिस्ट हायर करा हुआ है. आई एम नॉट एन आर्टिस्ट. Okay. आई एम जस्ट अ फाउंडर Okay. हु नोज अबाउट NFTs. एक सेकंड, पहले मैं आपको दिखाता हूँ फिर कैमरे में दिखाता हूँ. दिस इज माय आर्ट. That's super थोड़ा nice. हट के रियलिस्टिक है. या हाँ ऐसे यूजुअली नहीं होता. नहीं होता सब. बंदर, बोर्ड एप, ये वो कार्टूनिस्टिक है. हाँ. हम लाएं रियलिस्टिक. Okay. होता है लेकिन बहुत कम है अभी. हाँ. तो उसमें दिख रहा होगा होपफुली. हाँ होपफुली दिख रहा होगा इंशाल्लाह. हाँ सही है. ठीक है. हाँ. तो इस तरह के मेरा आर्ट है. एक और मैं दिखाऊँ तो ये देखें, थोड़ा फॉर्मल ड्रेसिंग भी है इसमें. That's cool. यस. Yeah, ये तो Shelby vibe. 3D. हाँ 3D render 3D है. आर्ट है. बिल्कुल 3D आर्ट है. देखें 3D आर्ट है. Cool. Okay. इस तरह के साथ में वीडियोस भी मैं बनाते रहता हूँ. वीडियोस तो नहीं देखेंगे लेकिन फॉर एग्जांपल दिस. All right, dude. यस. तो इस तरह की अब वो कॉपीराइट ना आ जाए आवाज़. हाँ अल्लाह रहम करेगा. मैंने हटा दिया फौरन इसलिए. सही ठीक है. है. हाँ. तो आवाज़ बंद करके दिखाता हूँ. 2-3 अच्छी वीडियोस बनाते हैं वो, उसके लिए मैंने अलग बंदा रखा हुआ है. हाँ. इस तरह की ना. अच्छा, and this is happening in the metaverse. Yes, this will happen. मतलब ये फॉर एग्जांपल बता रहे लोग कि जब अच्छा अब मैं ये मेरा बॉलर्स क्लब ETH नाम है इस प्रोजेक्ट का. ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है. उसको पाकिस्तान में मैं लाना चाह रहा हूँ. मतलब ऑडियंस को बताना चाह रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ, नॉलेज देना चाह रहा हूँ NFTs के बारे में. पहले NFT सीखेंगे, उसके बाद ही मेरे प्रोजेक्ट को ख़रीद या अडॉप्ट कर सकेंगे. ठीक है. तो NFTs का जितना हम लोगों ने थोड़ा सा मुख्तसर सा बता दिया लोगों को. तो जो NFT एक प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर होती है NFTs. मेरा प्रोजेक्ट का नाम है बॉलर्स क्लब ETH और मेरे प्रोजेक्ट के अंदर है NFTs. टोटल मेरे NFTs हैं 8,555. 8,555 NFTs हैं. एक NFT की वर्थ अभी डिस्क्लोज नहीं कर रही है, मैं यहाँ पे नहीं करूँगा क्योंकि पब्लिक नहीं है अभी तक वो. ठीक है. बट इथीरियम चाहिए होगा उसको. इथीरियम में ज़्यादा नहीं होगी, $300 $400 तक की होगी. ठीक है. लेकिन इथीरियम में खरीदना पड़ेगा. फिर आपको इथीरियम बाय करना पड़ेगा. वो भी ईजी है. ठीक है. 2-4-5 मिनट लगते हैं. पाकिस्तान में अगर आप यूट्यूब देखेंगे ना आप समझ जाएंगे. एक होती चीज़ P2P. उधर से आप खरीद सकते हैं. यूट्यूब पे वीडियो देखें 5 सेकंड 10 सेकंड थ्रू बाइनेंस 5 मिनट लगेंगे. आप उनको जैश कैश करेंगे या वट एवर बैंक ट्रांसफ़र करेंगे या वो आपको. अच्छा मैं भी मतलब किसी को हेल्प चाहिए तो मेरे पास डीलर्स बैठे हुए हैं जो आप उनको कैश दो
वो आपको ट्रांसफर कर देंगे। And people should get in touch with you on Instagram. Yes, they can. वो आप अटैच कर लेना। Rayan_Khan14 नाम है। उसमें मैं NFT का नॉलेज भी देना शुरू करूँगा, अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताना पड़ूंगा, अपने लाइफ के बारे में सब कुछ बताऊँगा। पहले मैं ये नहीं करता था, लेकिन अब मैं पब्लिक फिगर बन जाऊँगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैं एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा हूँ ना, तो सबको मेरे बारे में पता होना चाहिए। तो अब मैं स्टार्ट करूँगा वो, ऑफ कोर्स मैं इंस्टाग्राम पे। ठीक है, तो मेरा प्रोजेक्ट उसके 8,555 NFTs हैं। एक की वर्थ होगी $300 $400 अप्रॉक्सीमेटली, जो कि अभी डिस्क्लोज नहीं है, मैंने नहीं करी अभी तक। ठीक है, उसमें ये हमारा मैंने आर्ट दिखाया है, रियलिस्टिक आर्ट है। अब मेरा इसके पीछे प्रोजेक्ट होता है ना, देखिए NFT प्रोजेक्ट होता है। आप जब बाय करते हैं, जब उसका रोड मैप पढ़ते हैं, आप इन्वेस्ट करें $400, तो आपको इन रिटर्न में भी पैसे मिलने चाहिए, कम्युनिटी अच्छी होनी चाहिए, और आपको इन रिटर्न वो प्रोजेक्ट आपको ज़िंदगी भर देते रहे कुछ ना कुछ। अच्छा, बिल्कुल सॉलिड प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ना NFTs में, तभी आपको प्रॉफिट होगा। अगर आपने कोई भी प्रोजेक्ट में पैसे डाल दिए, तो अब ये टाइम आ गया कि NFTs में आर्ट भी मैटर नहीं करता है। आर्ट भी बुरा होगा, लेकिन उसकी हाइप अच्छी होगी प्रोजेक्ट की। ठीक है, मेरे पास एग्जांपल है, माइंड ब्लोन NFT है। उनका आर्ट मुझे पर्सनली इतना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, उनका आर्ट अच्छा नहीं है, लेकिन उनका प्रोजेक्ट अच्छा है, तो उसकी वजह से उनका प्रोजेक्ट अच्छा है, उनका रोड मैप अच्छा है, उनका हाइप क्रिएट हुई हुई है, तो वो फॉर श्योर सेल आउट होगा पूरा प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इस तरह मेरा प्रोजेक्ट है, उसका पूरा रोड मैप है। एक मिनट, रोड मैप तो विल गेट इनटू रोड मैप इन जस्ट अ मिनट। एज फार एज द कम्युनिटी गोज, say a big project like Bored Ape क्या देता है अपने लोगों को, people who buy it? Bored Ape फॉर एग्जांपल मैं नॉर्मली बताता हूँ, Bored Ape का स्पेसिफिकली बताऊँगा, समझ नहीं आएगा। जैसे प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, वो आपको मर्च देंगे अपना फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, Bored Ape का ये सीन है कि बड़ी बड़ी पार्टीज़ होती हैं जिसमें हम लोग छोटे लोग नहीं आ सकते, एज एन पैसों से छोटे नहीं। अगर आप बिलियनर ट्रिलियनर भी होंगे, आप नहीं जा सकते जब तक आप बोर्ड एप नहीं है। इतनी एक्सक्लूसिव आप पैसे जितने उड़ा लें, आप नहीं जा सकते। बड़े लोग आए होते हैं, लाइक सुनने में ये आता है कि जेफ बेजोस, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस तरह के एलोन जैसे लोग आते हैं, आए नहीं होंगे, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। बड़े लोग आते हैं दुनिया के, और जो बोर्ड एप होते हैं, तो आप फ्री एंट्री है। आप बोर्ड एप दिखाएंगे और आप पार्टी। अजूकी का भी इस तरह, अजूकी जो प्रोजेक्ट का थोड़ा मसला हुआ अभी बीच में, लेकिन उनका भी ये था कि वो पार्टीज उनकी हुई थी, पार्टी उसमें आप क्लब पार्टी। So essentially then, at least these two NFT projects have become represent करते हैं an exclusive club, right? Super exclusive, बिल्कुल। which मतलब अगर जैसे ख़त्म हो गए, बोर्ड एप मेरे ख्याल में ख़त्म है, मतलब होल्डर्स के पास है। हाँ, होल्डर्स के पास है। सो आपके पास वही आपने बोला, ट्रिलियनियर भी आप हो, you can't buy it नहीं, unless you buy it from the holder। हाँ, तो उसकी जो लीस्ट आपको सबसे सस्ता जो मिलेगा 10,000 में से, वो इस वक्त 100 थी मेरे ख्याल से, कल मैंने देखी थी 100 इथेरियम थी। 100 इथेरियम इज़ ऑलमोस्ट $3,20,000 और $2,20,000 पाकिस्तानी 3.5-4 करोड़ रुपए अप्रॉक्सीमेटली। Where do you think it started? And ये बोर्ड एप सेकंड प्रोजेक्ट था। ठीक है, बोर्ड एप भी इसलिए वायरल हुआ, इतना अच्छा, इतना ज़्यादा फेमस हो गया। आर्ट के हिसाब से बोर्ड एप से भी अच्छा आर्ट आते हैं अब। सही है, बहुत अच्छे आर्ट आते हैं। हमारे पाकिस्तान में एक आर्टिस्ट भाई, उनका नाम मुझे नहीं पता, यार रमेश, उनका अच्छा आर्ट है बहुत। एक और हैं, उनके भी, वो भी आर्ट बनाते हैं, नाम मुझे याद नहीं है। तो काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इनका आर्ट अच्छा है। लेकिन बोर्ड एप टॉप क्यों कर रहा है? क्योंकि पहला प्रोजेक्ट था, ऑलमोस्ट पहला प्रोजेक्ट था, साइबर पंक, क्रिप्टो पंक, और फिर ये, तो ये ऑलमोस्ट पहला प्रोजेक्ट था। तो पहली चीज़ जो होती है वो हमेशा ऊपर ही रहती है। नहीं, पर अगेन व्हाट वाज द स्टार्टिंग प्राइस? हाँ बिल्कुल, ये अमेज हो जाएंगे लोग। अभी इसकी वैल्यू बताई मैंने आपको, 3.5-4 करोड़, अभी थोड़े दिन पहले 8 करोड़ रुपये थी। थोड़ा डंप आया मार्केट में। स्टार्ट हुआ था $100 से $400 के बीच के। एग्जैक्टली राइट। एंड देन इन एक साल में, हाँ महीनों में बहुत ऊपर। अभी साल हुआ है इसको, थोड़ा दिन पहले, थोड़ा महीनों पहले तो साल हुआ। जिन लोगों ने $400-500 खरीदा था, एक बंदा उसके पास 114 एप है, 114 एप, सबसे बड़ा होल्डर है। ही इज अ बिलियनर, और पता नहीं ट्रिलियनर शायद बताया नहीं, लेकिन बिलियनर तो एटलीस्ट। हाँ, बिलियनर तो है। हाँ, राइट, ओके। सो यू विल प्राइस योर्स एट इतना ही $300-400। हाँ, ज़्यादा मेरे साथ जितना अफोर्ड कर सकें लोग। एक ये होता है रेड फ्लैग कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा प्राइस है सेल की, तो बाई नहीं करेंगे लोग। ओके, व्हाट डू यू ऑफर योर पीपल, द पीपल हु विल बाय योर NFT? ठीक है, मेरा रोड मैप है, काफ़ी बड़ा रोड मैप है। सही है, उसमें फॉर एग्जाम्पल मैंने दैट इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल, लेकिन आप बता दो। हाँ, मैं बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, आप वो पेस्ट कर देना है, जो भी सीन होगा इसका। ठीक है, तो मैं बड़े बड़े फैक्टर्स बताऊंगा। रोड मैप बहुत बड़ा है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बताऊंगा। 10% जो भी हमारी रेवेन्यू जनरेट होगी, रेवेन्यू मतलब जितने NFT सेल होंगे ना, टोटल रेवेन्यू जनरेट होगी, उसी के 10% पैसों से मेटावर्स में लैंड लूँगा, जो जैसे आपको बताया था क्लब के लिए। ठीक है, लैंड ले लिया, लैंड को मैं डिज़ाइन करूँगा, क्योंकि अच्छा मेरा जो प्रोजेक्ट है ना, वो रिवॉल्व करता है अराउंड क्लबिंग, एज इन पार्टी।
क्लबिंग नहीं, पार्टी और डीजे, नाइट पार्टी, नाइट क्लब, इस तरह का। मतलब मैं करे ब्रो, ठीक है। मतलब मस्जिद बना लेता, नहीं खैर ब्रो, सही है। ठीक है, तो मैं 18 साल का हूँ, तो मुझे यही पसंद है, पार्टी शार्टी करता हूँ मैं। तो पार्टी रिवॉल्व करता है अराउंड पार्टी। तो मैं 10% लूँगा, 10% पैसों से मेटावर्स में लैंड लूँगा, उस पर डिज़ाइन कर दूँगा क्लब। उस पर काम शुरू हो चुका है, डिज़ाइनिंग हो रही है। ओके, ऑलराइट। आई हैव द आर्टिस्ट, और वो इंटीरियर डिज़ाइनर भी है। अच्छा, तो वो अच्छा कर लेगा डिज़ाइन इंशाल्लाह। तो फॉर एग्जांपल मेरा डिज़ाइन हो गया, मेरे 8555 NFTs हैं। हाँ, तो उसके जितने भी बायर्स हैं ना, जिनने जो होल्ड करे हैं, उनको क्लब में फ्री एंट्री है। पार्टी हुआ करेगी उसमें, पार्टी में अगेन होल्ड मतलब NFT मिंट वाला प्रोसेस भी बताते हैं लोगों को ना। हाँ, क्या होता है। हाँ, तो आप जो है वो, क्योंकि आपने बोला होल्ड, राइट, सो बिफोर यू कैन बाय एन NFT you have to get a white list, right? Important, हाँ, very important. हाँ, so talk about that. हाँ, ठीक है, एक प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल माई प्रोजेक्ट बॉलर्स क्लब ही था, ठीक है। मेरे प्रोजेक्ट की सप्लाई है, कितने NFT सप्लाई बोलूँगा उसको, सप्लाई है 8555 NFTs, ठीक है। और आगे जाकर मेरे ट्विटर पे फॉलोवर्स हो जाएंगे मार्केटिंग के बाद, होपफुली इंशाल्लाह 1.5 से 2 से 2.5 लाख फॉलोवर्स इंशाल्लाह। तो इसका मतलब है 2.5 लाख बायर्स इंटरेस्टेड बैठे हुए हैं, लेकिन NFTs कितने हैं, 8555, सबको नहीं मिलेगा। सही जाहिर। तो उससे पहले एक होता है प्रोसेस वाइट लिस्ट स्पॉट। एक होती है, अच्छा ये नहीं होता कि अभी से मैं सेल लगा लूँगा, सेल फॉर मैक्सिमम 1 to 2 डेज़ होगी, जिसमें मैं 1 महीने पहले बता दूंगा इस दिन को सेल है मेरे NFT सारी NFTs की, आप आकर बाय कर सकते हो। एक होती है पब्लिक सेल, मतलब दुनिया का कोई आदमी भी मेरे वेबसाइट से ख़रीद सकता है। एक होती है प्री सेल, जिसमें लिमिटेड लोग खरीद सकते हैं, ठीक है। तो पब्लिक सेल से 1-2 दिन पहले होती है प्री सेल, ठीक है। उसमें ये होता है कि मैं वाइट लिस्ट रैंडम लोगों को गिव अवे करूँगा, उसका मेथड बताता हूँ वाइट लिस्ट कैसे लेते हैं। मैं उन लोग, जैसे मेरे 8555 लोग हैं ना, तो मेरी टोटल 3000 वाइट लिस्ट स्पॉट है। मैं 3000 लोगों को वाइट लिस्ट स्पॉट दे दूँगा, आखिर तक देते रहूँगा। फिर उनको क्या फ़ायदा होगा, वो 3000 लोग पब्लिक सेल से 1 से 2 दिन पहले मिंट कर सकते हैं NFT, ठीक है। मतलब वो बाय कर सकते हैं, मिंट मतलब बाय, सॉरी, मिंट मतलब, हाँ, उसको उधर की टर्म्स है। हाँ, सही। हाँ, तो वो उसको बाय कर सकते हैं 2 दिन पहले। अब उनको फ़ायदा क्या होगा, पहला तो आपको 100% श्योरिटी है कि आपको मिल गया। वरना 1.5 लाख लोग बैठे हैं, 8555 NFTs हैं, बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। पहली बात आपको 100% NFT मिलेगा, 3000 लोग हैं और 8055 सप्लाई है, ठीक है, 555। दूसरी बात, आपको जो पब्लिक सेल है ना, उसमें प्राइस थोड़ी ज़्यादा होगी, प्राइस भी ज़्यादा होगी, तो आप बेच सकते हो। हाँ, बेच भी सकते हो, ठीक है। तो आप पब्लिक सेल में फॉर एग्जांपल ज़्यादा होगी प्राइस, थोड़े से डॉलर ज़्यादा होंगे, 50, 100, 200 डॉलर, और पब्लिक सेल, प्री सेल में आपको सस्ता मिलेगा NFT। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तीसरा फैक्टर कि आप इथीरियम से जब भी कुछ बाय करते हैं ना, तो आपको गैस फीस लगती है, फीस होती है, वो डिपेंड करती है उस वक्त इथीरियम नेटवर्क पे कितना ट्रैफिक है, कितने लोग इथीरियम बाय कर रहे हैं, इथीरियम से कुछ और बाय कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा ट्रैफिक होता है ना लोगों का, उतना गैस फीस होती है। नॉर्मली अगर आप नॉर्मल बाय करेंगे तो 20 से 50 डॉलर लग जाते हैं, सही, गैस फीस। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लोग होते हैं तो 1 लाख, वो $1000, $1500, $2000 गैस फीस लग जाती है, ठीक है। तो जिस दिन पब्लिक सेल होगी ना, उस दिन मैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, गैस कॉन्ट्रैक्ट, गैस ऑप्टिमाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट, जिससे गैस फीस कम हो जाती है ऊपर। लेकिन फिर भी 200, 300, 400, $1000 लग जाती है लोगों, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है ना, बड़ा प्रोजेक्ट होता है। लेकिन जो, तो फॉर एग्जांपल आपकी NFT $400 की है, आपको गैस फीस दिख रही है $1000, आप लोगे नहीं NFT, बोलोगे कहाँ से ना उतने पैसे, आपने अपने पास लिखे होंगे, रखे होंगे $100-200, ठीक है। लेकिन जो प्री सेल में होते हैं ना लोग, जो वाइट लिस्ट स्पॉट होते हैं, उनको गैस फीस कम पड़ेगी। ओके, क्यों? क्योंकि 3000 लोग हैं सिर्फ, उस वक्त होंगे 1.5 से 2 लाख लोग एक्सेस कर सकते हैं। उस वक्त जो प्री सेल होगी सिर्फ 3000 लोग एक्सेस कर पाएंगे। सो लाइक एन एक्सक्लूसिव फ्री बायर्स क्लब, हाँ, इस ऐसे तरह बोल से सकते हैं कुछ इंग्लिश, हाँ, ठीक है। तो आपको 3 फ़ायदा होगा, आपके मिंट प्राइस, आपको पैसे कम सस्ती पड़ेगी, वो आपको गैस फीस से बचेंगे, और 100% श्योरिटी आपको NFT मिलेगी, ठीक है। तो ये वाइट लिस्ट स्पॉट होता है। एंड ऑल्सो एक मैं सॉरी बात काट रहा हूँ, ये बताना भूलिए कि वाइट लिस्ट लेते कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा ट्विटर है ना, तो ट्विटर पर मैं, अच्छा अभी जो मेरे NFTs हैं 8555, वो हिडन है, वो कोई नहीं देख सकता, नहीं जाहिर है, तो ये वो जिस दिन खरीदेंगे तब भी नहीं देख सकते, रैंडम मिलते हैं। ओके, रैंडम मिलते हैं, 2 दिन बाद रिवील होता है, वो आपके ऊपर होता है कब रिवील करो, प्रोजेक्ट के ओनर के ऊपर। तो ये ट्रेंड है कि उस वक्त कोई नहीं शो होता, 1 से 2 दिन बाद आपको रिवील होता है, ठीक है। तो अभी मैं ट्विटर पे फॉर एग्जांपल ऐसी हाइप क्रिएट करने के लिए ना स्नीक पिक डालता हूँ कि मेरा NFT इस तरह का, जैसे आपको दिखाया, ये दिखा चुका हूँ मैं लोगों को, 1-2-4 NFT में दिखा चुका हूँ। इस पोस्ट के ऊपर लिखा होता है इफ़ यू वांट अ वाइट लिस्ट स्पॉट डू दिस, उसमें होता है कि लाइक, रीशेयर एंड टैग 3 फ्रेंड्स, फॉलो, इंटरैक्ट, जो भी होता है, वो लिखा होता है, आपको फॉलो करना होता है। जितने लोग नीचे कमेंट्स करते हैं और वो टैग 3 फ्रेंड्स करते हैं, रैंडम लोगों को वाइट स्पॉट मिलता है। एक फार्मूला ये होता है। दूसरा फार्मूला वाइट लिस्ट हासिल करने का कि मेरा प्रोजेक्ट है, उसका डिस्कॉर्ड अभी प्राइवेट है, डिस्कॉर्ड ग्रुप भी होता है, मेन होता है सबसे। डिस्कॉर्ड जब पब्लिक होगा ना, तो काफ़ी लोग आ जाएंगे। उसमें ये होगा कि आपको लेवल होगा, लेवल 10 रीच कर लिया, आपको वाइट लिस्ट स्पॉट मिल जाएगा। लेवल कैसे रीच करेंगे? जितना इंटरेक्शन करेंगे, जितनी बात करेंगे, आपका लेवल बढ़ते रहेगा। Where do you store an NFT?
लाइक बाइनेंस उस तरह आपका है ओपन सी के अंदर ओपन सी वॉलेट नहीं है, लेकिन ओपन सी आप खरीद सकते हैं ओपन सी से, लेकिन स्टोर होगा आपका मेटामास्क वॉलेट। और बाइनेंस ने भी अपनी NFTs निकाली है, लेकिन वो फालतू है, बेकार है। सही है, उसको ज़रूरत नहीं है, उसकी लोग करना भी नहीं। आप मेटामास्क एक चीज़ है, वॉलेट है, वो सिर्फ एक्सक्लूसिव वॉलेट, ठीक है, वहाँ स्टोर कर सकते हैं आप। वो कनेक्ट करते हैं ओपन सी से, फिर उधर से बाइंग करते हैं, वो आपके वॉलेट में करते हैं। काफ़ी सारे वॉलेट्स होते हैं, कोल्ड वॉलेट या हार्डवेयर वॉलेट भी कनेक्ट कर सकते हैं, मेटामास्क और ऐसे काफ़ी ट्रस्ट वॉलेट और सारे बेसिकली देयर wallets that are compatible with the OpenSea. बिल्कुल, yes. And connected. वहाँ से आप कनेक्ट करते हो and then वहाँ पे बिल्कुल, जाता है. Again, nothing tangible, completely in the air, yes, right? Secured है. ठीक है. अब आप बात बता रहे थे कि आपने क्लब पे काम शुरू करवा दिया. ये रोड मैप, ठीक है। तो मेरा क्लब है 10 फॉर एग्जांपल 10% मिनट से मैं अभी जो डिज़ाइन हो रहा है ना, वो 100 वो असल नहीं हो रहा, वो एक लोगों को दिखाने के लिए हो रहा है, क्योंकि मैं लैंड खरीदने के बाद डिज़ाइन होगा ना, ऑफ कोर्स। तो लैंड तो वो खरीदूंगा आफ्टर द रेवेन्यू, अब आ जाएगी मेरे पास, ठीक है, इंशाल्लाह। तो 10% रेवेन्यू से मैं लैंड खरीदूंगा। वी आर टॉकिंग अबाउट यू बाय द लैंड, मतलब अभी जो है आप डेमो दिखा रहे हो लोगों को कि इस किस्म का डिज़ाइन का मेरा होगा, ठीक है, उसका फ़ायदा अब मैं पूरा बताता हूँ। रोड मैप डिज़ाइन कर लिया हम लोगों ने, आफ्टर बता रहा, अगर हमने पूरा सेल आउट करा या जितना भी सेल आउट करा, इंशाल्लाह 10% रेवेन्यू जनरेट हो गई, 100% हो गई रेवेन्यू। 10% से मैं लैंड खरीदूंगा मेटावर्स में थ्रू सैंडबॉक्स ने दुनिया बनाई हुई है डिजिटल, उसका लैंड हम बाय करते हैं। सैंडबॉक्स एक वेबसाइट है, कॉइन भी है, अनरियल इंजन वाला जो सीन है ना, हाँ उस तरह का है। तो उसके थ्रू आप उनका लैंड बाय करते हैं। फिर थोड़ा बताओ सैंडबॉक्स क्या होता है? ये अगेन दीस आर टर्म्स दैट पीपल गेट कंफ्यूज्ड विद ना। सैंडबॉक्स एक पहले सैंड कॉइन, एक सैंडबॉक्स मेटावर्स एक दुनिया है, उस दुनिया के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लाइक सैंडबॉक्स कंपनी है, डिजिटल वर्ल्ड बोल रहे हैं, जो आप उनका लैंड है, वो आपको लैंड बेच रहे हैं, अपना प्रॉपर्टी बेच रहे हैं अपनी, और वहाँ पे आप बनाते हो, वहाँ पे आप बनाते हैं। तो सैंडबॉक्स के थ्रू मैं अपना लैंड लूँगा। सैंडबॉक्स है और 2-3 और है, वहाँ से आप खरीद सकते। डिसेंटरलैंड है, सैंडबॉक्स है, ये सारी है जहाँ से आप खरीद सकते हैं लैंड। आई प्रेफर सैंडबॉक्स से मैं लैंड ले लूँगा, वहाँ पे मैं अपना क्लब जनरेट बना लूँगा, पूरा क्लब बन गया मेरा। तो जो मेरे 8 से 555 लोग हैं ना, जब भी पार्टीज़ होंगी उधर उनको फ्री एंट्री है, ठीक है। अभी आप मेटावर्स पता करें तो कम से कम वहाँ पे $500, $100, $200 की टिकट्स है कॉन्सर्ट की। तो अब वहाँ पे कॉन्सर्ट हो रहे हैं, ऑलरेडी हो रहे हैं वहाँ पे मीटिंग्स भी हो रही हैं, कॉन्सर्ट्स भी हो रहे हैं, पार्टीज भी हो रही हैं, ठीक है। सो अगर इस तरीके का सिनेरियो बनाया जाए कि यंगस्टर्स का एक कॉन्सर्ट हो रहा है मेटावर्स में, पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है, या इंशाल्लाह, राइट, हो रहा है एट दिस क्लब, व्हाट डू यू वांट टू कॉल योर क्लब, या ये रिवील नहीं किया अभी तक? बॉलर्स क्लब, राइट। सो एट बॉलर्स क्लब द यंगस्टर्स आर परफॉर्मिंग, दीज 8,555 पीपल गेट इन फर्स्ट एंड फॉर फ्री। मतलब उनकी वो जो शाम है या वो जो रात है वो लॉक्ड है, बिल्कुल, राइट। देयर लाइक हम तो जा रहे हैं, कभी भी जा सकते हैं, कैसे भी जा सकते हैं, विदाउट मनी, नो फीस। बाकी जो लोग आएंगे, जो बाहर से आएंगे, दे हैव टू पे द मनी, जितने भी पैसे होंगे जितने कॉन्सर्ट के होते हैं वो उनको, तो इनके लिए लाइफ टाइम क्लब की एंट्री फ्री, ठीक है। दूसरी बात, मेटावर्स में मेरा बना हुआ क्लब, क्या पता आप कल को आकर मुझसे हायर कर लें, वो रेंट पे ले लें कि मुझे यंगस्टर्स का कॉन्सर्ट कराना है, तो आप मुझसे लैंड लेंगे रेंट पे, उसके मैं फॉर एग्जांपल $50,000 मांगूंगा आपसे एक रात के, तो आप मुझे वो पैसे भेजेंगे और आप मुझसे वो ले लेंगे लैंड, और उस पर आप पार्टी कराएंगे फॉर अ नाइट, रेंट पे ले लिया, तो जो 50,000 रेवेन्यू जनरेट होगी। $50,000 का दे रहा है मुझे? नहीं, फॉर एग्जाम्पल ऐसी गलत बात है, चलो आप तो फ्री में ले लेना, खैर चले, ठीक है। तो एग्जाम्पल, तो आप फिर वो जो $50,000 है ना, वो मैं अपने 8,555 लोगों में ही डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। अच्छा, यू विल डिस्ट्रीब्यूट इट? यस, ये काफ़ी अच्छा रोड मैप, आप सुनते रहना, इंटरेस्टिंग है। तो ये रोड मैप का एक पार्ट है कि रेंट पे जो आएगा वो मैं इनको डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, थोड़ा मेरे पास जाएगा फाउंडर के पास, वो लिखा हुआ है मेरे रोड मैप में कितना %, बाकी मैं उनके पास जाते रहेगा लाइफ टाइम, जब तक मेरा प्रोजेक्ट है ये वाला, ठीक है, उनके पास जाते रहेगा, ये पहले पैसे चलेगा। दूसरा जो मेन फैक्टर है, जो मेरा फेवरेट है, जो मैंने काफ़ी टाइम सोचा पता, कि 10% ऑफ द सेल जो रेवेन्यू होगी जनरेट, उससे मैं क्लोथिंग ब्रांड शुरू करूँगा। ओके, नॉट ऑनलाइन, फिजिकली, सही है, इंटरनेशनली। जो अब काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, वो अपना मर्च निकालते हैं या ब्रांड खोलते हैं, वो ऑनलाइन होता है, ज़्यादा नहीं चलेगा ऑनलाइन, और वो बस वो सही है। तो मैं जो होऊंगा ना, मैंने सोचा है, जो मेरे रोड मैप में है, आई विल रेंट और बाय अ शॉप इन डॉलमेन मॉल, क्लिफ्टन, और डॉलमेन मॉल कहीं भी कराची में, या लकी वन, कोई बड़े मॉल में या कोई अच्छी जगह पे मैं दुकान लूँगा रेंट पे, या बाय जो भी मेरे अमाउंट में आ रही होगी, उसमें मैं स्टार्ट करूँगा क्लोथिंग ब्रांड। What is it called? बॉलर्स क्लब और बॉलर्स, ठीक है। बॉलर्स मैंने सोचा हुआ है,
सब कुछ बॉलर्स के रिवॉल्व करेगा. लाइक ब्रांड्स जो हमारे बड़े बड़े हैं कपड़ों के पाकिस्तान में, उनके मुझे कपड़े नहीं पसंद पर्सनली. मैं इस्तांबुल में इतने अच्छे अच्छे कपड़े ले लेता हूँ फ्रॉम ब्रांड्स H&M और इन सब ब्रांड से, तो यहाँ के मुझे पर्सनली पसंद. तो मैं अपना क्लोथिंग ब्रांड पूरा, चश्मे, कपड़े, सब कुछ, जूते, वो करूँगा. उसमें लोगों का क्या फ़ायदा है. जो भी मेरे बायर्स होंगे ना, अच्छा जिस दिन वो, अच्छा मैं स्टार्ट करूँगा उसको फ्रॉम कराची डाउन टू इस्लामाबाद, दुबई, इस्तांबुल, यूरोप, फिजिकली. ओके. ऑनलाइन पहले दिन से जिस दिन ब्रांड स्टार्ट होगा कराची में, उसी दिन पहले ऑनलाइन वर्ल्ड वाइड शॉपिंग होगी इसकी, ठीक है, डिलीवरी होगी. तो मेरे जो 8,555 NFTs के बायर्स हैं, उनको हर महीने 20% ऑफ. ऑलराइट, दैट्स गुड. एवरी मंथ. फैंटास्टिक. वन टाइम जितने आप बाय करें, 1 लाख, 10 लाख रुपए की शॉपिंग, 10% 20% आपको ऑफ है, ठीक है. उसमें हाउ आर यू मैनेजिंग कि ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हाउ आर यू मैनेजिंग टू गेट इट एवरीवेयर ऑनलाइन? जितनी, क्योंकि देखिए रेवेन्यू जब आ जाएगी ना तो उस काफ़ी सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे. उसके बाद मैंने काफ़ी सारे, मेरी जो टीम है वो 15 लोग की टीम है, उसमें 8 डेवलपर भी इंक्लूडेड है. तो मैंने काफ़ी, जितना मुझे आता नहीं है, जो जैसे इस फैक्टर के लिए मैंने डिलीवरी के लिए अलग बंदा होगा मेरे पास. क्लोथिंग का तो मैं खुद सब डिज़ाइन करूँगा, मैं अच्छे कपड़े पहनता हूँ, अच्छे मैं बना सकता हूँ, ठीक है. तो वर्ल्ड वाइड शॉपिंग होगी, जितने भी TCS से लेकर जो भी इंटरनेशनली करता है ना, उन सबको हम लोग लेंगे. और एक और बात, जो भी हमारे जो होल्डर्स हैं उनको डिलीवरी फ्री सब हमारे ऊपर आएगा कॉस्ट. क्योंकि अगर आप यहाँ से भेजेंगे ना अमेरिका कपड़े, तो $30 तो आपकी फीस लग जाएगी. 6,000 रुपये, 8,000 रुपये. तो दैट्स ऑन अस. एवरी मंथ 20% ऑफ, ठीक है. इसके बाद एक और बड़ी बात कि हमारा इसी के बाद 2 महीने बाद बॉलर्स क्लब का नया प्रोजेक्ट आएगा. उसका नाम होगा म्यूटेंट बॉलर्स क्लब, जिसका मतलब है मैं एक वीडियो बनाऊंगा जैसे आपको दिखाई थी अभी. उसमें ये होगा कि मेरे जो बॉलर्स हैं, एनिमेटेड वीडियो होगी, वो क्लब में डांस कर रहे हैं. वहाँ पे आएगा एक ज़ॉम्बी जो उनको बाइट करेगा. उसके बाद सब हो गए ज़ॉम्बीज़ कन्वर्ट, ठीक है. ये पूरी इसकी बड़ी वीडियो होगी 1 मिनट की. उसके फिर आगे मेरा नया प्रोजेक्ट म्यूटेंट बॉलर्स क्लब, उसका ये होगा कि वो ज़ॉम्बीज़ होंगे सारे, और 8,556 मतलब एक NFT एक्स्ट्रा हो जाएगी, क्योंकि ज़ॉम्बी भी आ गया ना. तो 8,556 NFTs हो जाएंगी मेरी, जो कि सेल आउट होंगे अगले 2 से 3 महीने में, ठीक है. उसका ये फ़ायदा को लोगों का कि जितने हमारे पास हैं, जिनने हमारा प्रोजेक्ट बाय किया हुआ है, सबको वाइट लिस्ट. ओके, ऑलराइट. फ्री. सो 8,556 वाइट लिस्ट फॉर फ्री. हाँ. और एटलीस्ट 7,600 या जो हमारे एक्टिव होल्डर्स होंगे ना, जो कि अवेल करेंगे वाइट लिस्ट, उनको वाइट लिस्ट फ्री हो जाएगा. अगले प्रोजेक्ट में वो वाइट लिस्टेड हैं. और अगर हमारे प्रोजेक्ट इंशाल्लाह सक्सेसफुल हो गया, तो अगले प्रोजेक्ट की हाइप इतनी होगी कि ऑटोमेटिकली जो वाइट लिस्ट वाले होंगे उनको बहुत फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है. अब एक और बात आती है कि उसको, जैसे मैंने एक NFT बाय किया, तो जितनी दफ़ा मैं उसको आगे बाय करूँगा, मुझसे कोई ख़रीदेगा ना, उसकी रॉयल्टी निकलती रहेगी. रॉयल्टी फ़ीस होती है. फॉर एग्जांपल मैं फाउंडर हूँ, मेरा एक NFT प्रोजेक्ट है, मेरा NFT एक है, वो मैंने सेल कर लिया. एक इंसान ने मुझसे ले लिया $600 का, $400 का, जितने का भी, ठीक है. उस पर 5% मैं रखी हुआ, मैं प्रोजेक्ट की 5% है रॉयल्टी, कि उसमें से 5% मेरे पास आएगा. अब वो जितनी दफ़ा सेल होता रहेगा, जितनी भी प्राइस पे आगे, एवरी टाइम 5% इज़ माइन, फाउंडर का होता है वो, ठीक है. तो उसमें से भी मैं 40% जो है ना वो गिव अवे कर रहा हूँ एवरी वीक. 40% एज एन के 10 सही है, ठीक है. तो एवरी वीक हमेशा के लिए 40%, 60% मेरे पास आएगा रॉयल्टीज़, 40% रॉयल्टीज़ मैं दूंगा लोगों को इन फॉर्म ऑफ, जैसे मेरा क्लब है मेटावर्स में, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, वो VR चाहिए. तो 10% से एवरी वीक जितना भी रेवेन्यू होगा, 10% रॉयल्टीज़ का मैं गिव अवे करूँगा VR लोगों को, ताकि वो हमें ज्वाइन कर सकें, ठीक है. हर तरीके से लोगों को हेल्प करनी है हमने, ताकि वो हमें हर तरीके से अटैच हो पाए हमसे. तो 10% वो होगा. 10% जो लोग सस्ता बेचेंगे मैंने NFTs, हम उनसे खरीद के उसको ऊपर सेल करेंगे, ताकि हमारी फ्लोर प्राइस ऊपर जाते रहे, हमारे NFT की वैल्यू बढ़ते रहे. तो ये भी होल्डर्स को ही फ़ायदा हो रहा है. 20% ये हो रहा है. 20% इसी तरह हम लोग 10% से हमारी पैसिव इनकम है, हम लोग 10% लोगों को ऐसे ही देते रहेंगे, भले वो $1 हो, $100 हो, हम हर बंदे को देंगे. इस तरह ये हमारा रोड मैप है. आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया मैंने. रोड मैप काफ़ी बड़ा है. We'll link it. That's super exciting, dude. So essentially what you're saying is you'll build a community, of course, right? And this community will exist both in the metaverse and in actual space, right? Physical space. बात काट रहा हूँ. एक और रोड मैप का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, माय फेवरेट, एक और कि जिस दिन हमने सेल आउट किया या जितना में सेल हुआ हमारा, उसके 1 हफ्ते से 2 हफ्ते, मैक्सिमम 1 मंथ, मैं रोड मैप परफेक्ट लिखी हुई कितने टाइम बाद, 2 से 3 हफ्ते बाद दुबई में यार्ड पार्टी है फ्रॉम बॉलर्स क्लब, और 5 रैंडम लोगों को हम बुलाएंगे. 8,555 NFTs है हमारी. तो अगर आप हमारी बाय करेंगे NFT, तो क्या पता आप उनमें से रैंडम हो, जो कि जिनको हम फ्लाई आउट कराएंगे, पूरे एक्सपेंस हमारे ऊपर है. वाओ. बिग यार्ड पार्टी, मतलब बिग वाली, अच्छी वाली जो होती है ना, हम लोग दुबई में वो कराएंगे,
और मैंने कभी देखी नहीं है ब्रो, मैं इससे क्या बोलूं, माशाल्लाह। खैर नाइजीरिया, जहाँ से भी बंदा हो, नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, पाकिस्तान, हम उसको पूरा एक्सपेंस, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, यस, तो पूरा एक्सपेंस हमारे ऊपर आएगा। हम उनको दुबई बुलाकर 5 लोग को पार्टी, यार्ड पार्टी, तो ये क्योंकि पार्टी भी रिवॉल्व करता है। बाकी एक और ये बात है कि मेरे दोस्त बैठे हुए थे, इवेंट्स कराते हैं, जितने इवेंट्स पाकिस्तान में होते हैं, तो उसमें ये होगा कि हमारा इवेंट होगा, जो भी इवेंट होगा मैं उनका स्पॉन्सरशिप करूँगा, जो भी करूँगा। मेरे होल्डर्स जो पाकिस्तान में है, फ्री में एंट्री, backstage. Yeah, right. Okay, and the people that we're talking about, we don't have to mention them, but the people we're talking about also work with some really big names. Yes, he does. The biggest names. Yes. Mashallah se. So yeah, dude, that also is a super exciting thing. What do your parents say to all this, man? Have you explained to them in this much detail? Ek minute, ruja. We also have to get out of here. No, we have time. What's it called? What do they say to all this? They're really happy. Yeah, now they're happy. Yes, मैं तो मम्मा के साथ होता हूँ इस्तांबुल में, अब्बू यहीं होते हैं पाकिस्तान में, लेकिन दे रियली प्राउड और दुआई करते हैं कि ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि मैंने इसमें बहुत मेहनत करी है और मैं कर रहा हूँ मेहनत। मैं एक और जो सबसे रिस्की पॉइंट है कि मैं पाकिस्तान में आया हूँ, क्यों गैदर करने के लिए। सबसे रिस्की है कि पाकिस्तानी ऑडियंस को ला रहा हूँ, उनको जीरो नॉलेज है, लेकिन मैं जितनी मैक्सिमम नॉलेज दे पाऊँगा मैं उनको दूंगा। और मैं चाहता हूँ कि वो मेरा प्रोजेक्ट बाय करें, ऑफ कोर्स मेरा भी फ़ायदा है, उनका भी फ़ायदा होगा और वो प्रॉफिट करेंगे, और मैं उनका NFT की नॉलेज भी दूंगा जितनी मैं दे सकता हूँ। तो ये काफ़ी रिस्की स्टेप है जो मैं पाकिस्तान में मार्केटिंग करवा रहा हूँ, सब तक पहुँच जाएगी, क्योंकि अच्छी मार्केटिंग कैंपेन शुरू होगी इंशाल्लाह, होपफुली 1-2 दिनों में। तो मैं चाह रहा हूँ कि पाकिस्तानी लोग बाय करें, क्योंकि उनको मैक्सिमम फ़ायदा मैं दे सकता हूँ, दे तो इंटरनेशनली भी सकता हूँ, क्योंकि जो मेरा रोड मैप है वो इंटरनेशनली ही है। पहले तो पाकिस्तान था ही नहीं रोड मैप में, लेकिन मैं उसको लेकर आया हूँ कि पाकिस्तान के लोगों को करना है, इनको आगे लाना है। क्यों? क्योंकि पीछे हैं, उनको पता नहीं NFTs क्यों नहीं पता। भाई आओ पैसे कमाओ, जब मैं कर सकता हूँ हर बंदा कर सकता है यार। आप क्रिप्टो उनको पता चल गया है, अब इतना लेट हो गया, क्या बाय करोगे आप? करो, अच्छी बात है, लेकिन बहुत आप हार चुके हो अभी तक, क्योंकि आपने पहले एंट्री नहीं की। तो NFTs को तो मिस नहीं करो ना, जो चीज़ आप मिस कर देते हो फिर आप उस पर अफसोस करते हो, और जब है आप नहीं लेते हो आप उसको। अभी आप दिखाएंगे किसी को पिक्चर, हंसेगा क्या बंदर है, बोर्ड एप जो 5 करोड़ की पिक्चर है उसको लेकर बंदर है। तो आप नॉलेज लो, आप पैसे कमाओ। रोज़ बंदा, मतलब मेरा NFT है, कोई NFT प्रोजेक्ट होता है, बंदा बाय करता है $400 का। एक प्रोजेक्ट था रिसेंटली, उसकी मिंट प्राइस थी एक इथीरियम $2000 का, $3000 का वो प्रोजेक्ट था। एक हफ्ते के अंदर उसकी फ्लोर प्राइस चल गई 20 इथीरियम। मतलब आपने एक इथीरियम का लिया, 20 इथीरियम का बेचा एक हफ्ते में। $60,000 का आपने बेचा, $1.5 करोड़ का। दैट रिक्वायर्स एजुकेशन। यस, ये ऐसे छक्के नहीं लगते, बिल्कुल नहीं लगते। लेकिन मुश्किल भी तो नहीं है ना, आप सीखो, आप कर सकते हो। मुश्किल नहीं है, आप सीखो, आप कर सकते हो। तो बिल्कुल लोगों को आना चाहिए, ये बहुत अच्छी फील्ड है। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, स्मार्ट वर्क है। हार्ड वर्क का ज़माना वैसे भी नहीं है, स्मार्ट वर्क का ज़माना। हाँ dude, you know वही वाली बात है what we're talking about with our parents' generations. You know, they don't understand this. You know, you're not going to work physically and you're going to get all this money. You know what I mean? Like it's just to them it's like. अभी भी मेरी मामा बोलती हैं जाओ बाहर काम करो यार। मैं जब घर में अच्छा कमा रहा हूँ, मैं बाहर क्यों जाऊँ? दूसरी बात कि मैं एजुकेशन सिस्टम सपोर्ट नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। ये वाला ना कोई भी। अच्छा, कोई भी बिल्कुल। मैंने अभी मैं सेकंड ईयर कर रहा हूँ वहाँ से, बाहर से, इधर का सेकंड ईयर बोलते हैं उसको। सही यूनिवर्सिटी में आने वाला हूँ, आया नहीं अभी तक। अच्छा, तो वो भी ज़बरदस्ती। और एक वो लाइन है ताला यूनिवर्सिटी के, ताला आज भी अपने बाप के लिए पढ़ता। ठीक है, वही वाली साइन, क्योंकि अपनी मम्मा की वजह से मैं पढ़ता हूँ बस। और अब मैं ज़्यादा इसको नहीं करूँगा, क्योंकि देखें जब ये हुआ था, जब जैसे मैं एक दफ़ा बैठा हुआ था क्लास में, बिज़नेस सिखा रहा था सर मेरा। वो सर हैं, वो बिज़नेस सिखा रहे हैं और ख़ुद बिज़नेस नहीं करते हैं। वो 30,000 सैलरी पे वर्क कर रहे हैं। I hear you. Yeah. ठीक है, वो 40,000 रुपये की नौकरी कर रहे हैं और वो मुझे बिज़नेस सिखा रहे हैं, जिनका खुद का कोई बिज़नेस नहीं है। कैसे सिखा रहे हैं? मेरे स्कूल में आज तक मुझे नहीं सिखाया कि पैसे कैसे कमाने। मेरे सारे कोलीग्स हैं ना, वो बहुत पीछे रह गए मुझसे। मैं बैठता हूँ उनके साथ हूँ, मेरे दोस्त हैं वो, लेकिन बहुत पीछे रह गए हैं वो, क्योंकि उन पढ़ा है उन्हें सिर्फ फोकस वहाँ पे कि 90% लानी है, A डायरेक्ट लाना है। मेरा फोकस कभी भी ये नहीं रहा। लेकिन आपका नुक्ता नज़र ये है कि ये इनकी खामी नहीं थी, ये एजुकेशन सिस्टम ने इनको फेल किया है। हाँ, that's what you're saying. हाँ, बिकॉज आई डोंट सपोर्ट दिस एट ऑल। आप पढ़ो प्राइमरी एजुकेशन तक, आप पढ़ो, उसके बाद अपनी स्किल्स ठीक करो। अगर आपने डॉक्टर बनना है या आपने लॉयर बनना है तो आप कंटिन्यू करो। लेकिन आपने बिजनेस करना है तो आप क्या पढ़ रहे हो? नहीं पढ़ो भाई, नहीं पढ़ो, आप ज़माना नहीं है पढ़ने का। बट या यू नो अ लॉट ऑफ पीपल नाउ आस्क मी ऑनलाइन, पता नहीं क्यों उनको लगता है कि मेरे पास जवाब होगा, लेकिन वो बोलते हैं कि शुड वी गो अब्रॉड फॉर अ बैचलर्स। अब मुझे बताओ, इंटरनेशनल स्टूडेंट 1 साल के $60,000 देता है बाहर जाने के, और पढ़ के क्या आता है ब्रो? MBA की नौकरी ना, कुछ भी नहीं। MBA की इस वक्त नौकरी
14,000 रुपये 16,000 रुपये सिर्फ MBA Yeah, नॉर्मली जो हो रहा है starting, yeah. 16,000 रुपये और वो 14 लाख रुपये अपनी पढ़ाई पढ़ाता है। अल्लाह बुरी बात से बजाय मैं जब क्रिप्टो करता हूँ तो मेरी गैस फीस का बिगड़ लग जाती है 6 लाख रुपये गैस फीस, और ये लोग 14,000 रुपये कमा रहे हैं पढ़ाई करके। अगर वो उसकी जगह बिजनेस या टायर की शॉप में ही काम कर लेते ना, वो बिजनेस सीख जाते और कल को अपनी शॉप खोलते वो, उसके बाद फिर वो कमाते पैसे। जब मैं छोटा था ना तो मेरे अम्मा अब्बा मुझे ज़्यादा पैसे नहीं देते थे क्योंकि कराची था और माहौल और नशे और सब कुछ, तो मैं रोज़ 10 रुपये जमा करता था, 20 रुपये 2-3 दिन में बस 100 रुपये जमा होते थे। उसके बाद मैं यूनाइटेड किंग जाता था और समोसे खाता था। ठीक है, एक दफ़ा मेरा भाई बालाज नाम है उसका, और मेरे अम्मा अब्बा हम लोग बाइक पे थे, 500 रुपये गिर गए थे, हमने 1 घंटे ढूंढ लेते 500 रुपये। तो पढ़ाई करता ना तो मैं कुछ, मुझे जो पर्सनली लगता है ना कि अगर मैं पढ़ता, जो कि अभी भी मेरी अम्मा बोलती है पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मतलब इनरोल तो हूँ, डिग्री तो मिल जाएगी, कर लूँगा पढ़ के, लेकिन कोई इंटरेस्ट के साथ मैं नहीं पढ़ता क्योंकि आई डोंट सपोर्ट के कुछ सिखाते। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है आपकी फैक्टर है लाइफ का कि आप पैसे कमाओ, कैसे कमाओगे वो नहीं सिखाते आपको, पैसे कैसे कमाने। Yeah, dude, I'm trying to come up with a counter argument, right? Because the thing is, so ये यहाँ तक तो आप सही बोल रहे हो कि इफ़ यू वांट टू गो इनटू एकेडेमिया इट्स नॉट टू अर्न मनी, लाइक देन यू, आपको पता है कि एकेडेमिया आप शौकिया कर रहे हो, फिलॉसफी पढ़नी है, राइटिंग पढ़नी है, कुछ भी करना है, शौकिया करो, राइट? और उसको उसी हद तक रखो। ये ना सोचो कि वहाँ से पैसे आएंगे, पैसे कमाना आपने अपने आप को सिखाना पड़ेगा। बट एंड देयर आर रिसोर्सेज ऑब्वियसली, आपने बहुत सारे रिसोर्सेज मेंशन किए हैं। यू आल्सो हैव योर ओन थिंग, नहीं वो आप स्टार्ट करोगे इंशाल्लाह, इंस्टाग्राम एंड ऑल दोस थिंग्स पे ना। बिल्कुल। एंड योर आई हैव अ रेस्टोरेंट एट टर्की। ओह, यू हैव अ रेस्टोरेंट? वी हैड, हाँ, या सेल आउट, लेकिन था। अब मैं बिल्कुल ये भी जो क्रिप्टो से कमाते हैं उनको फिजिकल भी लगाना चाहिए कि एक चीज़ पे ट्रस्ट नहीं करके बैठो, फिजिकल एसेट बनाओ, घर बनाओ, गाड़ियाँ लो, ये सब चीज़ें भी करो। हाँ, तो इस तरह अब मैं क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करना है इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह। But okay, but again the thing is money makes money ना, so you have to make money, right? आज भी मैं बस अभी इंस्टा खोलूँगा, उसमें आते हैं लोगों के विदाउट इन्वेस्टमेंट कैसे बनाए पैसे। यार कहाँ से बनाओगे विदाउट इन्वेस्टमेंट? आप जॉब कर लो यार, 10,000 रुपये बना लो, उसके बाद आप कमा लोगे पैसे। हाँ, लेकिन हाँ, बट अगेन डोंट सेल एनीथिंग टू मेक दिस थिंग हैपन। हाँ बिल्कुल। बट तो what you're saying essentially is alternative education. Yes. है ना ब्रो? Yes. लेकिन अब एक और बात कि आप डॉक्टर बनेंगे, आप अभी जाएं, आप तो यहीं रहते हैं, मैं भी यहीं रहता हूँ, आप जाएं मेन कराची में तो हर गली के एक कोने पे क्लिनिक है, कितने डॉक्टर हैं, सब क्लिनिक खोल रहे हैं। तो उसको भी मैं कितना सपोर्ट नहीं करता। पहले मैं बनना चाहता लॉयर, मैंने बोला नहीं, क्या करूँगा बन के भाई, झूठी बोलने पड़ेंगे बस। अल्लाह रहम करेगा। वो सब तो एक तरफ है, लेकिन ये जो आपने दूसरी बात बोली ना, देयर इज मार्केट सैचुरेशन, देयर इज एक्सट्रीम मार्केट सैचुरेशन, यू नो, बिकॉज एवरी I don't know, every year or every semester, every year we produce more and more doctors, but where are they supposed to go? Yes, where? You know? और स्पेशली पाकिस्तान में कहाँ? या फिर वो इनका ख्वाब होता है कि बाहर चले जाओ, तो फिर बाहर भी तो इवेंचुअली बाहर आपसे भी अच्छे बनने हैं। हाँ, लेकिन चलो आप बहुत अच्छे बन गए, यहाँ के बहुत अच्छे होते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज के, बट when they go abroad, right, like how eventually वहाँ पे भी jobs run out हो जाएंगे, you know, so you have to branch out and figure out how you're going to ज़रिया माश क्या होगा, how you're going to figure out। बहुत काम है करने को अगर बंदा करना चाहे, क्योंकि इस माइक पे ये भी किसी और ने बनाया है, ये कंपनी ने बनाया है, ये पूरा स्टैंड कंपनी ने बनाया है, तो हर चीज़ के लिए कंपनीज बनी हुई हैं। आप बिज़नेस स्टार्ट करो, बंदा जो बिज़नेस स्टार्ट करता है ना वो हमेशा सक्सेसफुल होता है। भले शुरू में उसको थोड़ा करना पड़ेगा, पेड़ काटना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद फिर वो प्रॉफिट करेगा, सेल्फ बिजनेस। I think the problem with starting a business is and people don't understand this often is कि then it's 24/7. You don't turn off a business, ना, you don't sign off a business. बिल्कुल। जैसे काम से आप घर आ जाते हो ब्रो, आप काम से घर आ गए हो, you know, they can't bother you anymore. वो कराची में फिर भी कर देते हैं, लेकिन बाहर तो नहीं होता ना ब्रो। नहीं होता बिल्कुल। But with the business you're on 24/7, dude. बिल्कुल you know, बिल्कुल। लेकिन फिर वो सेल्फ बिजनेस होता ना, मुझ में ये आदत है, मैं किसी की नहीं सुन सकता, तो शुक्र है मैं बिजनेस कर रहा हूँ। मतलब अब जॉब पे जाऊँगा, वो सुनाएगा भी मुझे, 20,000 रुपये की सैलरी भी देगा, क्या बंदा। आपका मसला ये 16 साल की उम्र में आपने इतनी सारी जो कामयाबी हासिल कर ली ना, आपके लिए, हाँ, अल्लाह आपको आगे भी कामयाब करे, लेकिन हाँ, द थिंग इज you're a different kind of person than me, for instance, right? Yes, could be. हाँ, because at 16 I had no money. Yes. I still don't have that much money, you know, and I went through the education system constantly. I did degrees, universities, and all those things, and so I have a different relationship with authority. Could be. You know, and that's super interesting. That's super important to understand. That you and I are not sitting here asking people to challenge authority. Yes.
we're asking people to take their freedom back. यस बिल्कुल एब्सोल्युटली क्या बात करी. बस देखें यार क्या बात है. और कुछ ब्रो, और कुछ would you like to say something else? Yeah, for now let's just यस वी कैन एंड इट. मतलब सब बता दिया, बाकी सपोर्ट करें मुझे इंशाल्लाह. और आप सबको ये बताते जाऊंगा कि आप लोगों ने सीखना है. मुझे नहीं, मेरे पास नहीं है, आप खुद सीखें. मैंने भी करा है, आप भी कर सकते हैं. ये बार बार बोल रहा हूँ. क्रिप्टो और NFTs गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के पास, गोल्डन. आप उसको अवेल करें. आप यूट्यूब खोलें, आप अभी आज से खोलें व्हाट आर NFTs, हाउ टू अर्न मनी थ्रू NFTs. 100 वीडियो आएंगी, 10 देख लें, आप सीख जाएंगे इंशाल्लाह. व्हाट्स इट कॉल्ड? इंस्टाग्राम क्या है? मेरा Rayan Khan, Rayan_Khan 14. ट्विटर? बॉलिस क्लब ईथ. और कुछ यूट्यूब है? नहीं, यूट्यूब नहीं, कुछ Okay. I will link all of this and the roadmap का PDF आप मुझे भेजोगे. I'll link all of that in the description. For sure. Dude, thank you for doing this, man. You know, and good luck to you. Thank you so Allah much. खैर करेगा इंशाल्लाह. इंशाल्लाह बिल्कुल. हाँ. And yeah, Thank you for having me here. बड़ा अच्छा लगा. पॉडकास्ट मुझे बहुत पसंद है वैसे. Allah रहम करे bro. Of course. Yeah, exciting stuff. Rayan Khan, Kazi Akbar. Assalamu alaikum. Hafiz.